ethical issues in research publications, and I'm going to cover today the copyright violations, then uh, plagiarism to some extent, then what are the UGC steps to curb the plagiarism in higher education. I'm going to focus on COPE guidelines also, and I'm also going to talk on research misconduct, that is fabrication and falsification, right? And some case studies also regarding plagiarism as well as copyright violations. So friends, let's start. I'm sharing my PPT presentation now. Madam, it is visible. Yeah. So friends, let's start with ethical issues in research publications. See friends, I always start my slide with this slide and my presentation with this slide. God has given brain, imagination and creativity to human being, and Mother Nature has blessed us with abundant of physical and biological resources. By using these two blessings, man started creating new inventions and his own world, right? But in earlier era, all these creations fail in a public domain because there was no system of intellectual property rights, right? But now, today we have a sound platform, legal platform of intellectual property rights to protect your creations, right? Now, I'm going to talk about some issues related to intellectual property rights, which are very important in the case of research publications, right? See what intellectual property is. Intellectual property is the creation of human mind. मानवी मेंदूचा आविष्कार जो असतो त्याला आपण इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणतो, and it has to be protected legally, right? Now, all of you know there are three types of properties now. That is movable property, immovable property, and the third one is intellectual property. That is जिसे हम चलत संपत्ति कहते हैं, अचल संपत्ति कहते हैं, और लास्टली इट इज बौद्धिक संपदा, right? See, this intellectual property is divided into two broad categories. The first one is industrial property. Industrial property covers patents, trademark, industrial design, and geographical indications. And the other part is copyright and related rights. अंडर कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स आप सबको पता होगा कि आप कोई बुक लिखते हो, वो बुक कॉपीराइटेड होता है, राइट? तो उसी प्रकार से राइटिंग्स के साथ साथ म्यूजिकल वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स, ऑडियो विजुअल वर्क्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, photographs, architectural works, then sound recordings and performance of the artists can also be covered under copyright. And this broadcasting rights, जिसे हम प्रक्षेपण के अधिकार कहते हैं, it comes under these related rights. Okay, we'll go ahead with copyright and plagiarism. See, you must, being an academician, you all are teachers, and being an academician as a researcher, you must know what is actually the difference between these two terms. These two terms are not synonymous, right? Now we will see the actual difference between copyright and plagiarism. See, both are related terms and both have to do with ethical use of information. See here, this sentence is very important. Both are related to the ethical use of information. And both the things are very important and close to us because we all are academicians, we are teachers, we do write research publications, right? So these two are very important for all of us. Now you can see in the slide this figure. This shows clearly that these two things are overlapping concepts.
And the biggest misconception about plagiarism is that it is synonymous with copyright infringement. It is not so. These two concepts are different, but little bit these are overlapping concepts. Now, what is plagiarism? Plagiarism is related with moral aspects. देखिए plagiarism जो होता है वो नैतिकता से जुड़ा है. How honest you are उससे जुड़ा है. Plagiarism means when you don't say where you took it from. इसका मतलब ये होता है कि आपने कहाँ कहीं से तो भी लिया है a big portion और आप उसको छुपा रहे हैं कि हमने यहाँ से लिया है. That is actually the plagiarism. And what is copyright infringement? Copyright infringement is when you take it without the permission of the copyright holder. देखिए कॉपीराइट होल्डर जो होता है वो अपने क्रिएशन को कॉपीराइट इसलिए करता है क्योंकि उसे वो मोनोपोली राइट मिलता है, राइट? और उसकी क्रिएटिविटी को आप उसके उसे पूछे बिना अगर यूज करते हो आपके काम में और ऐसे दर्शाते हो कि वो आपका क्रिएशन है तो ये तो चोरी हुई ना. सो दैट इज कॉपीराइट वायोलेशन. एंड कॉपीराइट वायलेशन के लिए सजाएं है, उसके लिए कानून है. लेकिन प्लेजरिज्म के लिए कोई कानून नहीं है. ये दोनों में डिफरेंस है. और ये जो ओवरलैपिंग पार्ट आप देख रहे हो दैट इज बोथ. दैट इज व्हेन यू टेक इट विदाउट परमिशन एंड पास इट ऑफ एज योर ओन वर्क. मतलब आप कहीं से लेते हो कॉपीराइट वर्क से पोर्शन और उसे आप साइट भी नहीं करते, एट्रीब्यूशन भी नहीं देते और आप कहते हो कि इट इज माय ओन क्रिएशन. तो ये ओवरलैपिंग पार्ट में प्लेजरिज्म भी होता है और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी होता है. सी कॉपीराइट का जो स्टेटमेंट होता है आपने बुक पे देखा होगा कॉपीराइट का स्टेटमेंट जो डिस्क्लेमर में देते हैं. देखिए यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द सिंबल ऑफ कॉपीराइट. उसके बाद में आता है कॉपीराइट होल्डर का नाम एंड उसके बाद आता है ईयर ऑफ क्रिएशन, राइट? ये तीन चीजों से बनता है कॉपीराइट स्टेटमेंट. नाउ हम आगे जाएंगे. देखिए जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है इसके लिए आपको उस ऑफिस में जाके रिलेवेंट फॉर्म्स भरकर फीस पे करके आपको क्लेम करना पड़ता है वो पेटेंट को, ट्रेडमार्क को, डिजाइन को. लेकिन कॉपीराइट एक ऐसी आईपी है जिसको आपने अगर ऑफिस में जाके रजिस्टर नहीं भी किया then also you can be the copyright owner, right? This is actually the thing. लेकिन if you want the extra protection for your creativity you must go to the copyright office and you can register your creation, right? Now हाउ टू यूज कॉपीराइटेड वर्क्स. देखिए आपको अगर कोई इमेज चाहिए तो आप क्या करते हो, गूगल इमेजेस पे जाएंगे. आप गूगल इमेजेस पे जाने के बाद में बहुत अच्छी सी इमेज आप डाउनलोड करेंगे. लेकिन जब भी आप गूगल इमेजेस से इमेज डाउनलोड करते हो आपको एक सावधानी बरतनी चाहिए कि उसका कॉपीराइट स्टेटमेंट क्या है वो आपको पहले देखना है. वो बहुत जरूरी चीज होती है क्योंकि मोर देन 60% 70% गूगल इमेजेस आर कॉपीराइटेड. और ऐसी कॉपीराइटेड इमेज और उसके साथ में अगर एक सेंटेंस और लिखा हो कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉपीराइट ओनर. अगर वहां पे ऐसा स्टेटमेंट है तो यू शुड बी मोर केयरफुल. यू शुड गो एंड सॉट द परमिशन ऑफ द कॉपीराइट ओनर टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग. लेकिन कॉपीराइटेड वर्क्स को रिसर्च पर्पस, एजुकेशन पर्पस, नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने के लिए हमारा जो कॉपीराइट एक्ट है उसमें एक प्रोविजन है और उसे कहते हैं फेयर यूज. ओके, फेयर यूज के अंतर्गत जो है वो आप कॉपीराइटेड वर्क्स का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? अभी हम देखेंगे कि हमारा जो कॉपीराइट एक्ट है वो फर्स्ट एक्ट बना इन 1914 में और उसके बाद में जो एक्ट बना वो कॉपीराइट एक्ट 1957 है जो आज भी लागू है विथ अमेंडमेंट्स, राइट? और ये जो हमारा कॉपीराइट एक्ट है इंडिया का इसमें यूके कॉपीराइट एक्ट का प्रभाव ज्यादा दिखता है रादर देन यूएसए. नाउ सी फ्रेंड्स व्हाट कॉपीराइट इज. It is a form of intellectual property law protecting original works. See, this original word is very important over here to know the copyright. It should be your original work.
It includes literary, dramatic, musical, and artistic works, okay, including computer software programs, architectural works, novels, movies, songs. But one thing you should remember that it does not protect facts, ideas, systems, and methods of operation. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यू मस्ट नो इट डज नॉट प्रोटेक्ट फैक्ट्स, आइडियाज, सिस्टम्स एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेशन. अभी यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ. जैसे मैं सोच रही हूँ कि वह अमावस की रात है, धुआंधार बारिश हो रही है, मेघ गरज रहे हैं, बिजली कड़कड़ा रही है, और ऐसे वक्त में एक मर्डर हो जाता है. कैन आई कॉपीराइट? No, ma'am. No, it's Yes, I cannot copyright this because वो मैं सोच रही हूँ. तो कॉपीराइट होने के लिए अगर मैं उसके ऊपर एक नॉवेल लिखती हूँ, डिटेक्टिव नॉवेल, मर्डर मिस्ट्री, राइट, अगर मैं उस चीज का फोटोग्राफ निकालती हूँ, अगर मैं उसका ड्राइंग निकालती हूँ, देन दैट थिंग आई कैन कॉपीराइट, राइट. तो देखिए, कॉपीराइट करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है. द वेरी फर्स्ट वन इज इट मस्ट बी योर ओरिजिनल वर्क, एंड द सेकंड वन इज इट मस्ट बी फिक्स्ड इन अ टेंजिबल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. यानी उसको मूर्त रूप में लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो कॉपीराइट हो सकता है. So two things are required for getting copyrighted. The first one is it should be your original work, and the other one is it must be fixed in a tangible medium of expression. Right. See now what it covers. Copyright protection covers reproduction, distribution, adaptation, display, and performance. See, I have written a drama, right? And somebody wants to stage it, right? He should take my permission. अगर वो परमिशन नहीं लेता है तो कॉपीराइट वायलेशन हो जाता है, राइट. हम आगे जाएंगे. सी, यू कैन सी दिस इज द ऑफिशियल homepage of Copyright Office in India. It is situated at New Delhi, right? And the URL is copyright.gov.in. आपको कॉपीराइट के बारे में कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन गो टू दिस पेज. देखिए, आपको यहाँ पे आपका कोई क्रिएटिविटी आपको कॉपीराइट करना है तो यहाँ पे फॉर्म्स दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं. यू कैन फिल दिस फॉर्म्स and you can get your work copyrighted. See here, the act is given, amendments are given, right? So e-filing of की सुविधा भी यहाँ पे है. आप घर बैठे बैठे आप आपका वर्क को कॉपीराइट कर सकते हैं, right? Now when you apply for copyright, तो आपका एप्लीकेशन इतनी सारी स्टेजेस से गुजरता है, ओके. एंड लीगली सब चीजें कंप्लीट होने के बाद यू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कॉपीराइट, राइट. अभी एज पर एज इंडिया इज कंसर्न एंड इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 इज कंसर्न, अगर एक बुक है आपने लिखी हुई, तो उसका कॉपीराइट कब तक जीवित रहता है? तो आपका पूरा लाइफ स्पैन, और आपके जाने के बाद में 60 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, 60 इयर्स तक ये कॉपीराइट जीवित होता है. और हेलो, हाँ मॅडम, माझं नेट मॅडम, कोणाचा ऑडिओ ऑन आहे, मी त्यांना सांगते आहे ऑडिओ ऑफ करायला. नेटवर्कचा प्रॉब्लेम मॅडम, इकडनं होऊनच नाही राहिला माझा. मॅडम, इकडनं होऊनच नाही राहिला माझा. मीटिंग लीव करा, मीटिंग लीव करिए आप और फिर से ज्वाइन करिए. ओके ओके ओके. अच्छा, माझ्याकडनं प्रॉब्लेम नाही आहे ना? नाही मॅम, प्लीज कंटिन्यू. ओके. देखिए, आपको अगर कॉपीराइट करना है तो आपका क्रिएशन क्या है, वेदर इट इज अ फोटोग्राफ, इट इज अ बुक, लिटरेरी वर्क है या फिर आर्किटेक्चरल वर्क है, तो उसके हिसाब से आपको फीस जो है वो भरनी पड़ती है, राइट. अलग अलग क्रिएटिविटी के लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर कॉपीराइट ऑफिस ने दिया हुआ है. नाउ हम रिसर्च पर्पस के लिए कॉपीराइट वर्क्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको कहा कि देयर इज अ क्लॉज इन आवर एक्ट दैट इज फेयर यूज, राइट. अभी देखिए, फेयर यूज किस प्रकार से होता है. सबसे पहले आप परमिशन लो कॉपीराइट होल्डर की,
वो अगर परमिशन देता है इट्स ओके, लेकिन वो कहता है कि नहीं, पे द फीस, दैट इज वी कॉल इट इन आईपीआर लैंग्वेज एज द रॉयल्टी। सही बात है, उसकी खुद की क्रिएटिविटी है, उसका ओरिजिनल वर्क है और वो आपको यूज करने दे रहा है, और उसके बदले में अगर वो फीस चार्ज करता है तो आपको वो फीस भरनी पड़ेगी, दैट इज द रॉयल्टी। एंड द थर्ड वन इज यू कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लाइसेंसेस फॉर यूजिंग द कॉपीराइटेड वर्क्स। तो ये तीन चीजों का समावेश जो है वो फेयर यूज के अंतर्गत होता है। नाउ व्हाट फेयर यूज इज? Fair use is an exemption to copyright law. It is created to allow things such as commentary, parody, news reporting, research and education about copyrighted works. देखिए, फेयर यूज के अंतर्गत अगर आपको कमेंट्री करना है, पैरोडी करना है, न्यूज रिपोर्टिंग करना है, रिसर्च करना है और एजुकेशन करना है, तो आपको कॉपीराइटेड वर्क्स का इस्तेमाल करने की परमिशन मिल जाती है, राइट? इसमें विदाउट द परमिशन और पेमेंट टू द ऑथर, देखिए ये सब चीजों के लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और आपको रॉयल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज यू शुड गिव द एट्रीब्यूशन, यानी साइटेशन आपको देना है। सी ऑल दीज आर नॉन कमर्शियल पर्पसेस, तो नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए फेयर यूज में सुविधा दी गई है, लेकिन उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, हम वो क्राइटेरिया भी देखेंगे। देखिए, फेयर यूज का मतलब ये नहीं है कि आप उसका एंटायर वर्क यूज करो, दैट इज नॉट अलाउड अंडर फेयर यूज। इट डज नॉट अलाउ यूज ऑफ अनदर्स एंटायर वर्क। The second one is it does not allow use of any part of another's work without attribution. आप यूज भी कर रहे हो कॉपीराइटेड वर्क और साइटेशन भी नहीं दे रहे हो, तो इट इज नॉट अलाउड अंडर फेयर यूज, राइट? तीसरी चीज है अलाउस यू टू यूज पार्ट्स ऑफ अनदर्स कॉपीराइट वर्क, यानी कुछ पार्ट आप उसमें से ले सकते हो, पूरा नहीं, विद ब्रेविटी, स्मॉल पोर्शंस यू कैन यूज। एंड द सेकेंड वन, कि अगर आप छोटा पोर्शन लेते हो उसमें से कॉपीराइटेड वर्क्स में से और प्रॉपर आप एट्रीब्यूशन देते हो, तो आपको परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है और रॉयल्टी पे करने की भी जरूरत नहीं है फॉर नॉन कमर्शियल वर्क्स, राइट? नाउ हम और आगे चलते हैं। फेयर यूज टू बी फेयर, कौन से क्राइटेरिया है, मतलब फेयर यूज डिसाइड करने के लिए क्राइटेरिया कौन से? द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया इज ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब है ओनली स्मॉल पोर्शंस ऑफ कॉपीराइटेड वर्क्स कैन बी यूज्ड, दैट इज द ब्रेविटी क्राइटेरिया। The second one is the user must not have had time to obtain the permission. कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमारा थीसिस का डेडलाइन होता है सबमिशन का और हमको वो चीज लेना ही है कॉपीराइटेड वर्क्स में से, तो एक काम कीजिए, कॉपीराइटेड वर्क्स में से अगर आपने कुछ पोर्शन उठाया और आपके पास में परमिशन सॉर्ट करने के का टाइम नहीं है, इन दैट केस व्हाट यू डू, यू गिव प्रॉपर एट्रीब्यूशन और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि आप ईमेल कर दो कॉपीराइट ओनर को कि आई हैव यूज्ड दिस मच पोर्शन फ्रॉम योर कॉपीराइटेड पेपर, ओके, फॉर रिसर्च पर्पस एंड प्रॉपरली एट्रीब्यूटेड। आप एक ईमेल करके उनको रख दीजिए, राइट? दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तीसरा क्राइटेरिया है क्यूमुलेटिव इफेक्ट। सपोज एक किताब है मेरी जो लाइब्रेरी में है, लेकिन उसकी लिमिटेड कॉपीज है, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इन दैट केस बच्चे क्या करते हैं कि जब भी उनको वो इश्यू होता है वो सीधा फोटोकॉपी कर लेते हैं पूरी बुक को। सपोज अभी मेरा जो है वो मेरा 2000 का किताब है, ओके, मार्केट में 2000 में बिकता है वो किताब, और अभी एक पूरी कॉपी दो बच्चों ने बना ली, तो मेरा 10% रॉयल्टी अगर मिलता है मुझे पब्लिशर से, तो 200 400 रुपए का मुझे नुकसान हुआ। ये अगर आप करते हो, मतलब कॉपीराइट ओनर का आर्थिक नुकसान आप करते हो, तो फेयर यूज के अंदर नहीं लिया जाता है, इट इज अनफेयर यूज एक्चुअली। सो द क्लेम्स ऑफ फेयर यूज जो होता है वो इवेल्युएशन करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया होता है पर्पस, किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो। सेकेंड वन होता है द नेचर ऑफ यूज। तीसरा होता है द अमाउंट ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क्स यूज्ड, आपने कितना अमाउंट यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड द फोर्थ वन इज द इफेक्ट ऑफ द यूज, उसका इफेक्ट कॉपीराइट ओनर पे क्या हो रहा है। तो ये चार क्राइटेरिया है फेयर यूज के, जो फेयर यूज को इवेल्युएट करता है।
नाउ आई एम गोइंग अहेड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, क्रिटिसिज्म, कमेंट्री, न्यूज रिपोर्टिंग, टीचिंग, स्कॉलरशिप एंड रिसर्च, ये सब जो क्राइटेरिया है वो फेयर यूज में आते हैं। और इन सब चीजों के लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, रॉयल्टी पे करने की जरूरत नहीं है, राइट। नाउ वी आर गोइंग अहेड विथ फेयर यूज। देखिए, ये जो ओनली स्मॉल पोर्शंस टू बी यूज्ड वाला जो क्राइटेरिया है, ब्रेविटी वाला, तो स्मॉल पोर्शन की डेफिनेशन मेरी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, इसीलिए गणेश सर, okay, to decide this brevity criteria, one conference, international conference was held, that is known as Conference on Fair Use, that is CONFU conference। और ये कॉन्फ्रेंस में कुछ रिजोल्यूशंस दिए गए थे कि स्मॉल पोर्शंस कैसे होने चाहिए। वो कहते हैं कि 10% और 3 minutes विच एवर इज लेस ऑफ अ मोशन पिक्चर, उतना ही आपको फेयर यूज में यूज करना चाहिए। 10% or 1000 words, whichever is less of a textual material. And you can see 10% or 30 seconds, whichever is less of a music, right? 10% और 15 images, whichever is less। तो इस प्रकार से कुछ रिजोल्यूशंस उन्होंने दिए हैं, और ये रिजोल्यूशंस आपको गूगल पे मिल जाएंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कंसल्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। नाउ ये जो कॉपीराइट होता है उसमें ऑथर्स के राइट्स होते हैं। एक तो राइट होता है इकोनॉमिक राइट, आप सबको वो चीज अभी समझ में आ गई। इफ इट इज अ ओरिजिनल क्रिएशन और मैं उसकी ओनर हूँ, तो मुझे मेरी क्रिएटिविटी के लिए इकोनॉमिक राइट्स प्राप्त होते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन के लिए, पब्लिशिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, अडेप्टेशन, ट्रांसलेशन एंड असाइनमेंट्स के लिए मैं रॉयल्टी क्लेम कर सकती हूँ। दिस इज वन बंडल अंडर कॉपीराइट, ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक राइट्स। नाउ there is one more bundle, that is moral rights, which are involved in this copyright bundle, and it is also known as author's special rights. See friends, this slide is very very important because it is related with plagiarism also, okay। author's special rights, ऑथर स्पेशल राइट्स में क्या होता है, एक तो होता है राइट टू पैटर्निटी, राइट टू पैटर्निटी मीन्स पितृत्वाचा अधिकार, राइट। हियर क्लेम ऑफ ऑथरशिप ऑफ द वर्क, दैट क्लॉज इज गिवन, मतलब आप ऑथरशिप के लिए क्लेम कर सकते हो। दूसरा है राइट टू इंटीग्रिटी, मतलब टू रिस्ट्रेन और क्लेम डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्टॉर्शन, म्यूटिलेशन, मॉडिफिकेशन और अदर एक्ट। आपका कॉपीराइटेड वर्क जो है उसका कोई डिस्टॉर्शन करता है, म्यूटिलेशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है, तो आप डैमेज चार्जेस उससे क्लेम कर सकते हो। सो दिस राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओरिजिनल क्रिएशंस। So these are author's special rights. Now, I will tell you one example of these special rights. ये फोटो में आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड दिस पर्सन इज अमरनाथ सहगल, एंड दिस केस इज बिटवीन अमरनाथ सहगल एंड यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए 1957 में अमरनाथ सहगल को बुलाया गया और उनको कहा गया था विज्ञान भवन जो है न्यू दिल्ली में उसका रिनोवेशन करना है। तो रिनोवेशन के लिए ये स्कल्पचर बनाते हैं, ब्रॉन्ज की मुरल्स बनाते हैं। तो उन्हें काम दिया गया ब्रॉन्ज की मुरल बनाने के लिए, जो स्थापित किया जाएगा विज्ञान भवन में। 1962 में इन्होंने वो काम कंप्लीट किया, 40 फीट बाय 140 फीट की मुरल बना के उनको हैंड ओवर किया। वो विज्ञान भवन के पोर्च में प्रस्थापित की गई। लेकिन 1979 में क्या हुआ कि उस बिल्डिंग का फिर से रिनोवेशन निकला, और ददन अथॉरिटीज जो थी उन्होंने क्या किया, द मुरल पुल डाउन कंसाइन टू स्टोर रूम, मतलब वो मुरल को उठा के उन्होंने स्टोर रूम में डंप कर दिया। तो अमरनाथ सहगल जी ने क्या किया, तो सीधा सीधा
डिस्टॉर्शन किया उनकी क्रिएशन के साथ में, तो अंडर दिस ऑथर स्पेशल राइट्स उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डैमेजेस क्लेम किए ₹50 lakhs अंडर द इंफ्रिंजमेंट ऑफ मोरल राइट्स। ठीक है, अभी देखिए कोर्ट ने क्या फैसला किया। कोर्ट ने फैसला किया मोरल राइट्स ऑफ आर्टिस्ट वायलेटेड, पेड डैमेजेस एंड वर्क बी रिटर्न टू द आर्टिस्ट। डैमेज चार्जेस उनको पे किए गए और उनका काम जो है उनको सम्मान से वापस किया गया। अभी एक और केस जो बहुत फेमस हो चुकी थी, क्रेजी 4 केस। द केस इज बिटवीन राम संपत वर्सेस राकेश रोशन एंड राजेश रोशन, 2008 बॉम्बे। ये जो फिल्म है उसका जो टाइटल सॉन्ग है उसका फिल्माया गया था शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के साथ में, लेकिन उस टाइटल सॉन्ग में एक पीस ऑफ म्यूजिक ऐसा था जो राम संपत ने सोनी एरिक्सन मोबाइल के एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपोज किया था। वो इन्होंने कॉपी करके वो गाने में फिट किया था। और ये जो फिल्म है वो फ्राइडे को मुंबई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मंडे राम संपत ने कोर्ट में पिटीशन दिया और उन्होंने 4 करोड़ रुपए का डैमेज चार्जेस क्लेम किए। राइट, अभी कोर्ट ने भी माना कि विद दिस इन्फ्रिंज्ड पीस ऑफ म्यूजिक यू कैन नॉट रिलीज द फिल्म। और फिर थर्सडे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ 2 करोड़ में, तब जाके फ्राइडे को ये पर्टिकुलर फिल्म जो है वो रिलीज होगी। तो इस प्रकार से कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट्स होती है क्रिएटिविटी के साथ में। उसके बाद में हम देखेंगे एक और बहुत बड़ी केस हो गई थी कलकत्ता में। देखिए हैरी पॉटर उस वक्त बहुत जोर शोर से चल रहा था और हैरी पॉटर का जो कॉपीराइट ओनर है वो J.K. राउलिंग है। हुआ ऐसे कि सॉल्ट लेक करके जगह है कलकत्ता में, वहां पे दुर्गा पूजा होती है धूमधाम से। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो स्टेज है, यू कैन सी ओवर हियर, ये जो पेंडॉल है वो हैरी पॉटर में जो हॉगवर्ट्स कैसल है उसके स्टाइल में बनाया, उनके चित्र लगा दिए उसके ऊपर में। तो J.K. राउलिंग ने अंडर दिस कॉपीराइट वायलेशन उनके ऊपर में डैमेज चार्जेस 20 lakhs का दावा ठोक दिया। अभी हुआ ऐसे कि दुर्गा पूजा कमेटी हो जो उत्सव है, उन्होंने उनके पास में 20 लाख कहाँ से आएंगे, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है हम पेंडॉल निकाल देते हैं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि इट इज रिलीजियस सेरेमनी और committee could continue with Pendal till puja and to file an undertaking stating that they would not use any character from the book without permission in future। यानी उन्होंने डिक्लेरेशन दिया और रिलीजियस फंक्शन है करके वो पेंडॉल का हटाने से मना किया। राइट, तो इस प्रकार से कॉपीराइट का अवेयरनेस ना होने की वजह से कितने सारे नुकसान हो जाते हैं। राइट, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, एक केस स्टडी है। देखिए एक मूवी आई थी हंटर वाली, इट वाज रिलीज्ड इन द ईयर 1930s, ओके, एंड हैड कॉपीराइट ऑफ इन अ यूनिक कैरेक्टर। उसमें एक यूनिक कैरेक्टर था फियरलेस नादिया स्टंट वुमन। ओके, अभी एक और मूवी आई रंगून इन द ईयर 2016 और उसमें कंगना रनावत ने लीडिंग रोल किया और उसके कैरेक्टर का नाम था जानबाज जूली, लेकिन उसमें लीगल बैटल हुआ। ठीक है, दिस इज द केस बिटवीन वाडिया मूवी वर्सेस विशाल भारद्वाज। ओके, और लीगल बैटल ऐसा था कि द कॉस्ट्यूम, द कैरेक्टर स्केच, द स्टाइल ऑफ वॉकिंग, वेयरिंग अ मास्क, अ whip, being a stunt woman and using the phrase bloody hell, everything was copied from Fearless Nadia's character। अभी यहाँ पे इशू ये है, क्वेश्चन ये है वेदर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कैरेक्टर फियरलेस नादिया टुक प्लेस और नॉट। अभी कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, कोर्ट हेल्ड दैट एज देयर वर सब्सटैंशियल कॉपिंग ऑफ द कैरेक्टर, रंगून ऑफ विशाल भारद्वाज वाज accused of infringement and was asked to pay bank guarantee of 2 crores। राइट, अभी एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है गजनी केस के लिए। देखिए तमिल वर्जन जो था गजनी का वो 2005 में रिलीज हो गया,
उसमें भी जो कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर, ही सफर्ड फ्रॉम टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड वाज आउट टू गेट रिवेंज फॉर हिज वाइफ्स मर्डर। इन द ईयर 2008 गजनी का हिंदी वर्जन आया। ओके, उसमें भी जो मेन कैरेक्टर था, ही सफर्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एंड वाज आउट ऑफ द रिवेंज फॉर हिज गर्लफ्रेंड्स मर्डर। इसमें फर्क क्या था? फर्क इतना ही था कि पहले इसमें वो वाइफ के मर्डर का रिवेंज लेने जाता है और यहाँ पे गर्लफ्रेंड के मर्डर का रिवेंज लेने जाता है। अभी क्वेश्चन ये है, जो तमिल मूवी थी गजनी, उसका जो कॉपीराइट है वो इन्फ्रिंज हुआ क्या ये केस में? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट हेल्ड दैट देयर वेर इन्फ्रिंजमेंट एंड इंटरिम इंजंक्शन वाज ऑर्डर। मतलब कोर्ट ने कहा कि हाँ, यहाँ पे भी कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है। ओके, देखिए, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। कॉपीराइट का अगर आप वायलेशन करते हो, नोइंगली या अननोइंगली आपसे हो जाता है, इट इज क्रिमिनल ऑफेंस, और उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्शन आया तो आपको इम्प्रिजनमेंट यानी जेल में जाना पड़ सकता है अप टू 3 years, बट नॉट लेस देन 6 months। और आपको फाइन जो है 50,000 से 2 lakhs के बीच में फाइन हो सकता है। सो दीज आर वेरी वेरी सीरियस मैटर्स, और हम सबको रिसर्च के लिए कॉपीराइटेड वर्क्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज कॉपीराइटेड वर्क्स फॉर योर रिसर्च। अभी देखिए, वी हैव एम्पल ऑफ लिटरेचर अवेलेबल अंडर ओपन एक्सेस। अब अगर आपको आपका काम ओपन एक्सेस में डालना है, तो देर आर सम लाइसेंसिंग सिस्टम्स जिसे हम क्रिएटिव कॉमन्स कहते हैं। They issue you various licenses for your copyright, your open access works। जैसे CC BY है, CC BY NC है, CC BY NC ND है। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग प्रिविलेजेस देते हैं। जैसे आपको CC BY अगर आपने लाइसेंस चुना आपके ओपन एक्सेस वर्क के लिए, तो वो परमिशन किस चीज की देता है? रीड, डाउनलोड, प्रिंट, share, distribute, reuse, build on, tweak, remix, translate and reuse commercially। मतलब आप सभी चीजों की परमिशन देते हो यूजर को कि ये मेरा ओपन एक्सेस वर्क है, मेरा CC BY लाइसेंस है, यू कैन यूज इट कमर्शियली आल्सो। लेकिन इफ यू चूज CC BY NC, तो वो आपको रीयूज कमर्शियली के लिए परमिशन नहीं देता है। यू यूज CC BY NC ND, तो वो आपको रिमिक्स, ट्रांसलेट, ट्विक और रीयूज कमर्शियली को परमिशन नहीं देता है। तो इस तरह से आप आपके ओपन एक्सेस वर्क्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो अंडर दिस क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग सिस्टम्स, right? This is also a one part you must know while publishing the papers and while reading about the ethical issues. Now, I know there was one lecture by some eminent personality regarding plagiarism. So I will not talk much about plagiarism. Just I will take in brief view and I will go into the details of UGC steps to curb this plagiarism. Okay. So plagiarism, what plagiarism is? It is the act of presenting another's works or ideas as your one. देखिए, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अनदर्स वर्क और आइडियाज। This ideas word is also very important to know the plagiarism। देखिए, मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, उदाहरण बताती हूँ। अगर मैंने आपके क्लास में कहा कि डीमोनेटाइजेशन पे 5 मिनट में 2 पैराग्राफ लिखिए, डीमोनेटाइजेशन पे 2 पैराग्राफ लिखिए, एंड यू आर फ्री टू यूज योर मोबाइल्स। ठीक है, तो कुछ पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, मैंने जो लाइव क्लासेस होते हैं ना, उसमें ये चीज हमेशा मैं देती हूँ मैं बच्चों को असाइनमेंट। तो कुछ पार्टी एंड आई आई ऑब्जर्व द पार्टिसिपेंट्स, राइट? कुछ पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, फट 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 अपना स्मार्टफोन निकालते हैं, उसमें गूगलिंग करते हैं, दे टेक द फैक्ट्स, 4-5 आर्टिकल रीड करते हैं, और वो बहुत अच्छे से लिखते हैं 2 पैराग्राफ। कुछ पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, दे वोंट डोंट यूज देयर मोबाइल्स। वो उनके दिमाग में जो है डिमोनेटाइजेशन के बारे में, वही वो कागज पर उतारते हैं। अभी देखिए, ये 2 तरह के पार्टिसिपेंट्स हो गए। अभी प्लेजरिज्म किसने किया? प्लेजरिज्म जिन्होंने स्मार्टफोन उठाया उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने
4-5 पेपर रीड किए, उसके बाद में उसमें से आइडिया बोरो करके यहाँ पे लिखी, लेकिन उनको उन्होंने साइटेशन नहीं दिया। समझ में? साइटेशन नहीं दिया मतलब उन्होंने कंसल्ट तो किया, आइडिया तो दूसरों के दिमाग से लिए, लेकिन उन्होंने एट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो वो प्लेजरिज्म का एक्ट होता है। लेकिन दूसरा जो ग्रुप है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और अपने दिमाग में जो है वो उन्होंने लिख दिया, दैट मीन्स दे हैव यूज्ड द कॉमन नॉलेज। तो आप कॉमन नॉलेज को यूज करते हो तो आपको साइटेशन देने की, एट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर कंसल्टिंग टू सम पेपर्स, देखिए ये पकड़ा कैसे जाएगा? ये पकड़ा जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। मैं वहां पे खड़ी हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, इसलिए वो पकड़ा गया। इसके लिए आपको अंदर से ऑनेस्ट होना पड़ता है। इसलिए मैं कहती हूँ, इफ यू आर टेकिंग आइडिया, यू आर कंसल्टिंग अनदर्स पेपर्स, उनकी आइडिया बोरो करते हो, फिर भी अपने शब्दों में लिखते हो, बाय यूजिंग दोज आइडिया, आप उनके शब्द नहीं यूज करते लेकिन आइडिया यूज करते हो, तो भी आपको एट्रीब्यूशन देना जरूरी होता है। क्या फर्क पड़ता है 2-3 साइटेशंस देने में, राइट? So be honest, that is only the thing. See, the word plagiarism, it comes from Latin word plagiaris, इसका मीनिंग होता है किडनैपर, right? See, plagiarism is the act of presenting the words, ideas. See, every word is important over here. Plagiarism is the act of presenting the words, ideas, images, sounds, or the creative expression of others as your own. Now, what plagiarism is? Plagiarism is a sort of intellectual theft. It is improper use of others' writings, ideas, artistic expressions, music, etc. Then presenting the works of another as one's original work. That is Control A, Control C, Control V. Don't ever do that in your life. Okay. Then failing to credit another's intellectual property. मतलब आप क्रेडिट देना भूल जाते हो। ऐसे कैसे भूल जाते हो किसी और को? उसकी क्रिएटिविटी को यूज करके you should not do this thing. You should give the attribution always. See, while going through the literature on plagiarism, I got a simple definition about this plagiarism. P stands for poor documentation, L for loose control on textual meaning, A for act of demoralizing, G for getting poor reputation of country, I for informing the wrong history, A for act of malpractice, R for risky literature, I for invisible referencing, S for selecting horrific writing, and एम फॉर मीनिंगलेस पैराफ्रेजिंग। देखिए, आपको एक पैराग्राफ लेना है किसी और के पेपर का, आपको खुद के भाषा में लिखना है, तो उसे पैराफ्रेजिंग कहते हैं। लेकिन पैराफ्रेजिंग जो होता है वो अगर इफेक्टिव नहीं रहा तो मीनिंगलेस होता है। इट अगेन कम्स टू द प्लेजरिज्म एक्ट। ओके, प्लेजरिज्म नोइंगली होता है, कभी कभी एक्सीडेंटली हो जाता है, लेकिन नोइंगली जो करते हैं, राइट, तो उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट प्लेजरिज्म, क्योंकि उनका इंटेंशन ही होता है कि प्लेजरिज्म हो, राइट, दैट इज। लेकिन सजाएं दोनों के लिए सेम होती है। देखिए, हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में, एजुकेशनल सिस्टम्स में प्लेजरिज्म की सजाएं जो है, अभी तक हमने देखा है, वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है, या रीसबमिशन ऑफ वर्क के लिए कहा जाता है, या ग्रेड आपकी कम की जाती है, या फिर फेलियर ऑफ असाइनमेंट होता है, फेलियर ऑफ द कोर्स होता है, राइट। तो ये सब सजाएं हमें देखने मिलती है। देखिए, दिस इज जस्ट अ फिलर। ये बॉस कहता है सबऑर्डिनेट को कि प्लेजरिज्म का रिपोर्ट बना के लाओ, बंदा जाता है गूगल पे, प्लेजरिज्म का प्लेजराइज रिपोर्ट बना के लाता है, एंड द बॉस सेज यू हैव कॉपीड ऑल दिस ऑफ द इंटरनेट। आपने ये सब इंटरनेट से कॉपी किया, तो मीनिंग क्या रहा प्लेजरिज्म के रिपोर्ट का, राइट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। वर्ड फॉर वर्ड मीन्स डिक्टो, मीन्स पूरा के पूरा वैसे के वैसे उठा के आपने पेस्ट किए। Mosaic means some 3 lines from this, quotations from this, definitions from this, and वो आप आपके इसमें weave करते हो। Then thesaurus आप you can use for this paraphrasing purpose, ठीक है। जैसे thesaurus में आपको मिलते हैं related words, synonyms, broader terms, narrower terms. So for paraphrasing this is done, but paraphrasing अगर आपने ठीक से नहीं किया तो again it becomes the act of प्लेजरिज्म। देन आइडियाज, जैसे मैंने डिमोनेटाइजेशन का आपको बताया, इफ यू आर बोरोइंग द आइडियाज फ्रॉम अदर्स वर्क्स यू शुड गिव द एट्रीब्यूशन।
Then self-plagiarism is one of the issue. Regarding this plagiarism, I will tell you in detail because UGC has given guidelines for this self-plagiarism recently, right? During lockdown period. Now, don't ever do this. That is the direct plagiarism. Control A, Control C, Control V. सिर्फ अपना नाम बदल दिया वहाँ पे. Don't ever do this in your life because now there are plagiarism detecting tools also, and now UGC has become very strict regarding plagiarism, and the punishments I will tell you described by UGC are very very strict now. See, this is patchwork or mosaic plagiarism. What here? This is second kind of plagiarism that is very common. Okay, here this occurs when the plagiarizer borrows the phrases and clauses from the original source and weaves them into his own writings. यानी कुछ phrases, कुछ clauses किसी और के काम में से लेके वो क्या करते हैं अपने writings में weave कर देते हैं. लेकिन वो करते वक्त वो phrases को quotation में नहीं डालते हैं और ना ही attribution देते हैं. So it is patchwork plagiarism. पैराफ्रेजिंग के बारे में मैंने आपको कहा है. देखिए सेल्फ प्लेजरिज्म का मतलब ये है कि हमारा एक पेपर पब्लिश हो गया, उसमें से हमने आधा मटेरियल उठाया, उसमें कुछ एडिशन किया, दूसरा पेपर पब्लिश किया. आपको लगता है कि ये तो मेरा ही काम है ना, तो क्या करेंगे? तो वैसे नहीं होता. इट इज सेल्फ प्लेजरिज्म उसको कहा जाता है. अभी देखिए ये सेल्फ प्लेजरिज्म के बारे में यूजीसी के जो डायरेक्शंस है वो मैं आपको 2 स्लाइड्स के बाद में बताऊंगी. तो यहाँ से मैं स्किप कर रही हूँ. देखिए तुरंत ही बता देती हूँ. सी यूजीसी ने 20 अप्रैल 2020 को एक नोटिफिकेशन निकाला है सेल्फ प्लेजरिज्म के बारे में. उन्होंने कहा है कि रिप्रोडक्शन इन पार्ट और होल ऑफ वंस ओन प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क विदाउट एडिक्वेट साइटेशन एंड प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट and claiming the most recent work as new and original for any academic advantage amounts to text recycling. देखिए यूजीसी ने सेल्फ प्लेजरिज्म के लिए नया शब्द यूज किया है दैट इज टेक्स्ट रिसाइकलिंग एंड उन्होंने कहा कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. देखिए आप हाइड नहीं कर सकते कि हमने ये टेबल हमारे पुराने पेपर में यूज किया है, उसको एकदम नया आप नहीं बता सकते हो. सपोज आपने 2 टेबल आपके पुराने पेपर से उठा के नए पेपर में लिए हैं, तो यू शुड गिव प्रॉपर साइटेशन टू योर प्रीवियस वर्क. आप उसको ओरिजिनल है दूसरे पेपर में भी ये क्लेम नहीं कर सकते हो एंड वो टेक्स्ट रिसाइकलिंग की केस हो जाएगी. देखिए यूजीसी ने ये नोटिफिकेशन में और एक डिटेल गाइडलाइंस दी है टेक्स्ट रिसाइकलिंग के बारे में. वो कहते हैं कि टेक्स्ट रिसाइकलिंग इंक्लूड्स द वेरी फर्स्ट इज रीपब्लिशिंग द पेपर विदाउट साइटेशन. रीपब्लिशिंग द पेपर विदाउट साइटेशन इसका मतलब ये होता है कि आपने सेमिनार में पेपर प्रेजेंट किया, प्रोसीडिंग में पेपर आया, उसी पेपर को उठा के आपने जर्नल में दिया विदाउट गिविंग द साइटेशन और प्रूफ जो है कि सेमिनार वॉल्यूम में पब्लिश हो चुका है, ये चीज को हाइड किया तो वो सेल्फ प्लेजरिज्म की केस हो जाती है. The second one is publishing small work from longer and previous work without citation. मतलब आपने पुराना जो है आपका पेपर, उसमें से आपने क्या किया स्मॉल पोर्शन उठा लिया और पूरा आपने ये कर दिया, नया करके उसको प्रिटेंड किया, राइट. और पुराने पेपर में से आपने लिया है ये चीज को, ये फैक्ट को आपने हाइड किया, then it is text recycling. Then third one is reusing the data already used without citation. आपने एक पेपर में डेटा यूज किया और वही डेटा आपने दूसरे पेपर में यूज किया और आपने पहले का citation नहीं दिया, it is self plagiarism. Then breaking up longer study in smaller sections and publishing as a new without citation. ये भी जो चीज है वो बहुत गलत चीज है. लॉन्गर स्टडी को स्मॉल में ब्रेक करना, लॉन्गर स्टडी ऑलरेडी पब्लिश्ड है
फिर उसको स्मॉल 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 ब्रेक करना और फिर से नया पेपर दिखाना, इट इज सेल्फ प्लेजरिज्म। एंड पैराफ्रेजिंग ऑफ प्रीवियस वर्क, मतलब आपने क्या किया, जो शब्द प्रीवियस पेपर में यूज किए वो शब्दों को यूज नहीं किया, अलग शब्दों में लिखा, लेकिन प्रीवियस पेपर का खुद के पेपर का आपने साइटेशन नहीं दिया, अगेन इट इज सेल्फ प्लेजरिज्म, राइट। नाउ एक चीज मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, इन माय नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू टॉक ऑन रिसर्च मैट्रिक्स। सो उसमें आपको बहुत सारे मैट्रिक्स, इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह ये सब चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सेल्फ साइटेशन जो है, जो इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है जर्नल का, उसका कैलकुलेशन करते वक्त सेल्फ साइटेशन गिने नहीं जाते हैं, राइट। आगे चलते हैं। Now, what UGC has done till date regarding this plagiarism issues? देखिए, सबसे पहले 2009 में ये चीजें शुरू हो गई जब से API आया, ठीक है। तो यूजीसी ने मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल PhD डिग्री के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है और निकाला है 1 जून 2009 को, okay. And UGC instructed all Indian universities to have an anti-plagiarism policy. देखिए 2009 में ही UGC ने हमारी पूरी यूनिवर्सिटी को बताया था कि एंटी प्लेजरिज्म की पॉलिसी बनाओ, लेकिन एज फार एज माय स्टडी गोज बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ये प्लेजरिज्म पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई है, ओके। और उन्होंने आपका जो भी रिसर्च वर्क है उसका प्लेजरिज्म चेक करके उसको शोध गंगा में अपलोड करने के निर्देश दिए थे, राइट, इन 2009। और ये शोध गंगा पोर्टल विच इज द पार्ट ऑफ शोध सिंधु नाउ, यू कैन सी दिस इज द होम पेज, और यहाँ पे हर अवॉर्डेड थीसिस जो है वो अपलोड होता है, राइट। MOU जो यूनिवर्सिटीज ने साइन किए हैं वो यूनिवर्सिटीज के अवॉर्डेड थीसिस आपको यहाँ से मिलते हैं। नाउ इन 2014 एंड 15 जो इन्फ्लिबनेट है यूजीसी के ऑटोनोमस बॉडी, so Inflibnet gave access to 110 university for Authenticate and Turnitin. See, this Authenticate and Turnitin are commercial software. तो पहली फेज में यूजीसी ने 2014-15 में 110 यूनिवर्सिटीज को ये दो सॉफ्टवेयर का एक्सेस दिया। In 2015-16, Inflibnet provided Urkun to 135. उसके बाद में यूजीसी ने उर्कुन पे शिफ्ट किया। उर्कुन का आपको डेमोन्स्ट्रेशन मिल चुका है अभी तक, राइट। तो 135 यूनिवर्सिटीज को उन्होंने उर्कुन दिया। इन सितंबर 2019, Inflibnet provided PDS Urkun to 1000 higher education institutes in India. In September 19 only, MHRD has launched PDS Shodha Shuddhi, for which Inflibnet is the nodal officer. देखिए उन्होंने एक पोर्टल बनाया शोध शुद्धि के नाम से इन 2019 और Inflibnet को उसका नोडल ऑफिसर दिया है। यू कैन सी द होम पेज ऑफ दिस शोध शुद्धि ओवर हियर, okay. And these many are the member institutions, these are the total users, this is the recent coverage, right. Now I'm going to tell you one more very important, you must know the very recent, इसमें आप बैठते हो ये आपको फॉलो करना ही करना है, and this is the notification। हाँ, हर एक यूनिवर्सिटी ने अभी तक उनका डायरेक्शन नहीं इशू किया है, लेकिन यूजीसी ने गाइडलाइंस दिए हैं रिसेंटली। दिस इज द वेरी रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ यूजीसी। देखिए उन्होंने इसको कहा है प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी and prevention of plagiarism in higher educational institutions, regulation 2018. It was issued on 23rd July 2018, right. अभी इसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें कवर की है, लेकिन अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड चीज है वो क्लॉज नंबर 6 में। देखिए इसमें उन्होंने कहा है कर्बिंग द प्लेजारिज्म, प्लेजारिज्म को कैसे कम करना। तो इसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, मैं आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। पहला पॉइंट है यूजीसी कहती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल डिक्लेयर एंड इम्प्लीमेंट द टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज्म यूजिंग एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर so as to ensure that documents such as thesis, dissertations, publications
or any other such documents are free of plagiarism at the time of their submission. यानी यूजीसी कहती है कि हर इंस्टीट्यूट ने, हर यूनिवर्सिटी ने अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर, जो अभी उर्कुंड है यूजीसी रिकमेंड कर रही है, तो वो उसका एक्सेस सबको देना चाहिए और ये आपके पूरे रिसर्च पब्लिकेशंस जो भी रहते हैं उसको प्लेजरिज्म चेक करना चाहिए एट द टाइम ऑफ सबमिशन. दूसरा पॉइंट वो कहते हैं कि द मैकेनिज्म एज डिफाइंड एट ए अबव शैल बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल एंगेज्ड इन रिसर्च वर्क इंक्लूडिंग स्टूडेंट, फैकल्टी, रिसर्चर एंड स्टाफ. वो कहते हैं ये जो सॉफ्टवेयर आप ले रहे हो उसका एक्सेस हर एक को देना चाहिए, लेकिन जैसे कि स्टूडेंट, फैकल्टी, रिसर्चर एंड स्टाफ, हर एक के पास एक्सेस होना चाहिए. तीसरा पॉइंट कहती है यूजीसी, एवरी स्टूडेंट सबमिटिंग अ थीसिस, डिसर्टेशन और एनी अदर सच डॉक्यूमेंट्स टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल सबमिट एन अंडरटेकिंग indicating that the document has been prepared by him or her and that the document is his or her original work and free of any plagiarism. देखिए अभी तक हम डिक्लेरेशन देते थे बीइंग अ स्टूडेंट कि दिस इज माय ओरिजिनल वर्क एंड नॉट सबमिटेड टू एनी अदर यूनिवर्सिटी और एनी अदर डिग्री, राइट. लेकिन अभी वो डिक्लेरेशन में आपको एक और चीज लिखनी है फ्रॉम स्टूडेंट साइड कि प्लेजरिज्म इट इज चेक्ड एंड इट इज फ्री ऑफ एनी प्लेजरिज्म. ये आपको डिक्लेरेशन देना है सबमिशन के वक्त में. चौथा पॉइंट जो है यूजीसी ने कहा है वो कहा है द अंडरटेकिंग शैल इंक्लूड द फैक्ट दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन ड्यूली चेक्ड थ्रू अ प्लेजरिज्म डिटेक्टिंग टूल अप्रूव्ड बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट. मतलब उनको ये कहना है कि जो अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर है जो यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया है उसी में से प्लेजरिज्म चेक किया है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में से नहीं, राइट. ये भी डिक्लेरेशन में इंक्लूड करना है. पांचवा पॉइंट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल डेवलप अ पॉलिसी ऑन प्लेजरिज्म एंड गेट इट अप्रूव्ड बाय इट्स रिलेवेंट स्टैट्यूटरी बॉडी एंड द अप्रूव्ड पॉलिसी शैल बी प्लेस्ड ऑन द होम पेज ऑफ हायर एजुकेशन. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने नहीं की है. वो क्या कहते हैं, आपकी पॉलिसी बनाओ पहले प्लेजरिज्म की, गेट इट अप्रूव्ड बाय द स्टैट्यूटरी बॉडीज और उसको आप होम पेज में उसकी लिंक दीजिए. ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के इसमें मुझे नहीं दिखी है एज फार एज माय स्टडी गोज. फिर उसके बाद में आता है सुपरवाइजर का काम. स्टूडेंट ने तो डिक्लेरेशन दे दिया कि इट इज फ्री फ्रॉम प्लेजरिज्म. अभी ईच सुपरवाइजर शैल सबमिट अ सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग दैट द वर्क डन बाय द रिसर्चर अंडर हिम और हर इज प्लेजरिज्म फ्री. मतलब यहाँ पे केवल स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसके ऊपर आप पूरा ये नहीं डाल सकते ब्लेम. अगर प्लेजरिज्म है तो यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल और आपको लिखित में देना है थीसिस में, डिसर्टेशन में कि ये काम जो है आपके अंडर हुआ है इट इज प्लेजरिज्म फ्री. फिर उसके बाद में है HEI shall submit to InfluMnet soft copies of master's research programs, dissertations and thesis within a month after the award of degree. वो कहते हैं कि डिजिटल रिपोजिटरी जो है शोध गंगा उसमें अपलोड करने के लिए अवार्ड होने के 1 महीने के अंदर आपका सॉफ्ट कॉपी वहां पे पहुंचाना चाहिए. एंड लास्टली व्हाट यूजीसी सेज कि हर एक यूनिवर्सिटी ने अपनी एक खुद की इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी खोलनी चाहिए और वहां पे आपके फैकल्टी के, रिसर्चर्स के, स्टूडेंट्स के जो पब्लिश डिसर्टेशन है, थीसिस है, पेपर्स है, वो सबको आपको अपलोड करना है, right? So it is very recent one in 2018. Okay. Now I am going to some more details about this notification. देखिए यूजीसी ने केवल ये निर्देश ही नहीं दिए हैं, तो यूजीसी ने एक सिमिलैरिटी चेक के लिए एक्सक्लूजन के पॉइंट्स दिए. देखिए आप सब ने प्रीवियस लेक्चर में उर्कुंड का डेमोन्स्ट्रेशन देखे हैं. उर्कुंड आपको जब रिपोर्ट जनरेट करके देता है तो वो आपको देता है सिमिलैरिटी चेक का परसेंटेज और उसे आप कहते हैं कि प्लेजरिज्म 25% निकला, 20% निकला, 15% निकला, उसको कम करना है, राइट. तो ये जो सिमिलैरिटी चेक करते हो तो आपको थीसिस कौन से रूप में देना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए सिमिलैरिटी चेक करते वक्त इट शैल एक्सक्लूड, क्या क्या निकालना चाहिए उसमें. all quoted work reproduced with all necessary permissions or attribution. देखिए जहां जहां पे ऑथर ने पूरा रेफरेंस दिया है
और पूरे परमिशन सॉर्ट किए हैं कॉपीराइट इश्यूज के लिए और प्रॉपर साइटेशन है, तो उस चीज को आप ऑफ कर दो, एक्सक्लूड कर दो, तो परसेंटेज कम आएगा। दूसरी चीज, ऑल रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस एंड एक्नॉलेजमेंट, ये सब चीजें प्लेजरिज्म चेक करते वक्त निकाल देनी चाहिए, वो आपको नहीं देना है चेक करते वक्त थीसिस को। तीसरा है ऑल जेनेरिक टर्म्स, लॉस, स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड स्टैंडर्ड इक्वेशंस। देखिए ये आप यूज करेंगे, उसके पूरे रेफरेंसेस भी देंगे, सब देंगे, तो उस चीजों को एक्सक्लूड का बटन रहता है उसमें, उसको एक्सक्लूड करते 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 आना चाहिए, राइट। तो ये एक्सक्लूजन के सिमिलरिटी चेक करते हुए प्रॉपर पिन पॉइंटेड डायरेक्शंस जो है वो यूजीसी ने इशू किए हैं। नाउ हाउ टू हैंडल द प्लेजरिज्म, इसके लिए भी यूजीसी ने निर्देश दिए हैं। सपोज अगर किसी का वर्क प्लेजरिस्ट है, ऐसे किसी ने कंप्लेंट किया है, तो उसके लिए एक डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल बना के रखना है आपने। उसमें जैसे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेयरमैन रहेगा उसका, उसके साथ में एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेगा और एक ये प्लेजरिज्म चेकिंग में जो एक्सपर्ट है वो रहेगा, राइट। और फिर उस डिपार्टमेंटल लेवल में उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर मैटर डिपार्टमेंटल लेवल पे नहीं सॉल्व होता है तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे, दैट इज इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल का आपको बनाना है, जिसमें ऑनरेबल वाइस चांसलर विल बी द चेयरमैन, उसमें डीन रहेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रहेंगे, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स रहेंगे, और फिर वो मैटर जो है वो वहां पे हैंडल होगा, ठीक है। ये भी डायरेक्शंस नए नोटिफिकेशन में यूजीसी ने इशू किए हैं। नाउ यूजीसी का ये जो 2018 का रेगुलेशन है, उन्होंने एक और चीज रिकमेंड की है, वो कहते हैं द रिसर्च शैल बी बेस्ड ऑन ओरिजिनल आइडियाज विच शैल इंक्लूड। देखिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि एक एक शब्द आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। यूजीसी कहती है द रिसर्च शैल बी बेस्ड ऑन ओरिजिनल आइडियाज which shall include abstract, summary, hypothesis, observations, results, and recommendations only, and shall not have any similarities. ठीक है। और यूजीसी नाउ हैज केम अप विथ यूनिक लेवल बेस्ड डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी एंड लेवल ऑफ पेनल्टीज। अभी यूजीसी ने क्या किया कि सीधा सीधा पेनल्टी बता दिया कि ये रहेगा डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब प्लेजरिज्म आपका 10% के नीचे रहेगा तो क्या होगा, 10 से 40 के बीच में रहेगा तो क्या पेनल्टी है, 40 से 60 के बीच में रहेगा तो क्या पेनल्टी है। तो उन्होंने स्पेसिफिक पेनल्टी डिसाइड की है थ्रू दिस नोटिफिकेशन, एंड वी विल सी दोस पेनल्टीज नाउ। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट थीसिस एंड डिसर्टेशंस। ओके, थीसिस और डिसर्टेशंस के लिए अगर सिमिलैरिटी चेक में सॉफ्टवेयर उर्कुन जो है वो आपका बिलो 10% देता है, तो देर विल नॉट बी एनी पेनल्टी और आप थीसिस सबमिट कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर सिमिलैरिटी चेक 10% और 40% के बीच में है, तो यूजीसी कहती है स्टूडेंट को थीसिस वापस कर दो और उसको और 6 महीने काम करने के लिए बोलो, और सिमिलरिटी जो है जो है प्लेजारिज्म उसको कम करके थीसिस लाने के लिए बोलो। मतलब आपको 6 महीने थीसिस सबमिट नहीं करने देना है, दैट इज द पेनल्टी फॉर यू। नाउ लेवल 2 में है कि आपके थीसिस में 40 to 60% का अगर सिमिलरिटी चेक आता है तो आपको 1 साल रीसबमिट आप नहीं कर सकते हो, और मोर देन 60% अगर आपके थीसिस में प्लेजरिज्म पाया जाता है तो आपका रजिस्ट्रेशन पीएचडी का कैंसिल हो जाएगा। So these are the directions which are issued by UGC in 2018. Right? So UGC has become very strict regarding these plagiarism issues. Now, UGC ये भी कहती है कि अगर आपका रिसर्च पब्लिकेशन है जैसे आपका बुक है, बुक चैप्टर है, या फिर आपका रिसर्च आर्टिकल है, जर्नल पेपर है, तो क्या पेनल्टी होगी। लेवल 0 में कहते हैं कि बिलो 10% है पेपर में सिमिलैरिटी चेक, देयर विल नॉट बी एनी पेनल्टी, और वो
एक्सेप्ट हो जाएगा इफ द कंटेंट इज गुड। और 10 to 40% के बीच में अगर आपका सिमिलैरिटी चेक मिलता है तो आपको वो पेपर हटा देना है। ऑथर विल हैव टू रिमूव द रिसर्च वर्क। एंड 40 से 60 के बीच में अगर आपका पेपर में पाया जाता है सिमिलैरिटी चेक, तो उन्होंने 3 टायर पेनल्टी इशू की है। 3 टायर पेनल्टी में वो कहते हैं ऑथर विल हैव टू विड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट, ये तो होगा, लेकिन दूसरा होगा ऑथर विल नॉट बी गिवन 1 एनुअल इंक्रीमेंट, एक एनुअल इंक्रीमेंट आपका रोक दिया जाएगा। तीसरा है ऑथर विल नॉट सुपरवाइज एनी न्यू स्टूडेंट फॉर मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी फॉर 2 years। देखिए कितना स्ट्रिक्ट ये नॉर्म्स बनाए हैं। एंड मोर देन 60% अगर सिमिलैरिटी पाई जाती है आपके पेपर में, तो अगेन 3 टायर पेनल्टी, ऑथर विल हैव टू विड्रॉ द मैन्युस्क्रिप्ट फर्स्ट। सेकेंड वन, ऑथर विल नॉट बी गिवन 2 एनुअल इंक्रीमेंट्स, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 एनुअल इंक्रीमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। एंड ऑथर विल नॉट सुपरवाइज एनी न्यू स्टूडेंट फॉर मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी फॉर 3 years। See, these are actually the similarity percentage and penalties decided by UGC. Now, why do people plagiarize? क्या कारण होते हैं plagiarize करने के? The very first is ignorance. Second one is lack of knowledge on ethics of scholarly writing. अब हमारे पास में ethics के बारे में knowledge ही नहीं रहता। Poor writing skills, हमारी vocabulary weak है। The third one is ambition, fears competition. वो 4 पेपर लिख रहा है, मुझे 6 पेपर लिखने हैं। अरे एक ही लिखो, लेकिन स्कोपस में लिखो, वेब ऑफ साइंस में लिखो ना, क्यों 10 पेपर चाहिए? साल में एक ही पेपर लिखो, तगड़े इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में लिखिए ना। फिर तीसरा है प्रेशर फ्रॉम सीनियर्स, पब्लिश और पेरिश सिस्टम। द लाइफ हैज बिकम फास्ट, हमें हर चीज इंस्टेंटली चाहिए। और सबसे बड़ा कारण ये है कि चांसेस ऑफ गेटिंग कॉट और एक्शन बीइंग टेकन इज स्लिम इन आवर सिस्टम्स। ओके, नाउ जैसे कि हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म के बारे में आपको कहा गया है, सो आई विल ओनली ब्रीफली कवर दिस पॉइंट्स। एक्चुअली बी ऑनेस्ट, give proper attribution, this is the very first thing। And if you want to take from others works, take it with brevity, only small portions। किसी के जो सेंटेंसेस आप लेते हो तो यूज कोटेशन मार्क्स, एंड पैराफ्रेज द थिंग्स प्रॉपरली एंड गिव रेफरेंसेस। आपने पैराफ्रेजिंग करके उसको ओरिजिनल वर्क बताया तो वो भी गलत है, दैट इज द एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म। देन प्रेजेंट योर ओन आइडियाज एंड ऑलवेज यूज प्लेजरिज्म चेकर्स। देखिए ये एक उर्कुन का पेज है जिसमें एक रिपोर्ट जनरेट हुआ है। मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कि यूज कोट्स, है ना, तो कहीं और से लिया है तो कोट्स यूज करने से और रेफरेंस देने से यहाँ पे ऑफ हो जाता है। वो यहाँ पे ब्रैकेट्स में का मटेरियल चेक नहीं करना सिमिलरिटी के लिए, तो ऐसे ऑप्शंस जो है वो उर्कुन में है। इसीलिए यूज प्रॉपर स्टाइल ऑफ राइटिंग योर वर्क, राइट। सो शॉर्ट कोट्स, कोटेशन मार्क्स, देन लॉन्गर कोट्स जो है तो इंडेंशंस यूज कर सकते हो आप। जैसे एक पूरा पैराग्राफ आपने लिया है कहीं और से, या कोई केस स्टडी ली है कहीं और से, और उसका पैराग्राफ बहुत बड़ा है, तो यूज इंडेंट मार्क्स। यहाँ से एक इंडेंट अंदर कीजिए, यहाँ से एक इंडेंट अंदर कीजिए। इफ यू आर यूजिंग 12 फॉन्ट, देन यूज 10 फॉन्ट फॉर दैट, और उसको इटैलिक्स करके उस नीचे लिख दीजिए। जो पढ़ने वाला है तो उसको तुरंत ध्यान में आता है, अरे ये इसने नहीं लिखा है, कहीं और से रेफरेंस के लिए लिया है, तुरंत रेफरेंस दे दीजिए नीचे ब्रैकेट में। तो ये चीजें करने से, राइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने से, यू कैन अवॉइड द प्लेजरिज्म। अगर आपने कहीं से चार्ट लिया है, टेबल लिया है, डायग्राम लिया है, तुरंत उसके नीचे उसको एट्रीब्यूशन दे दीजिए। और देखिए एक और चीज मैं आपको एक बताने जा रही हूँ कि कोप, अभी यूजीसी के नोटिफिकेशन में भी इस चीज का उल्लेख हुआ है, COPE 1999। ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है गूगल पे, आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें से कुछ चीजें आई वांट टू हाईलाइट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। सी व्हाट कोप इज। कोप स्टैंड्स फॉर कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, राइट। नाउ ये पर्टिकुलर चीज आपको मिलेगी publicationethics.org से। ये उसका रिसेंट होम पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें देखिए गाइडेंस में फ्लो चार्ट्स, गाइडलाइंस, केसेस दिए हुए, राइट।
तो आप यहाँ पे गाइडलाइंस देख सकते हो। जैसे इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस गाइडलाइंस, तो मैंने वर्ड दिया प्लेजारिज्म, तो प्लेजारिज्म पे मुझे कुछ 5 रिजल्ट्स आए। उसमें से ये देखिए, टेक्स्ट रिसाइकलिंग गाइडलाइंस फॉर एडिटर्स। टेक्स्ट रिसाइकलिंग वर्ड जो है उन्होंने सेल्फ प्लेजरिज्म के लिए यूज किया है। And by following this particular document, UGC has also given the notification in April 2020 lockdown period, and UGC has also used the word text recycling, that is self plagiarism. अभी ये सेल्फ प्लेजरिज्म की गाइडलाइंस आप यहाँ पे डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ भी सकते हो कि क्या क्या करना है आपको। प्रीवियस पेपर में से अपना खुद का ही रिप्रोडक्शन करना है, उसको रिप्रोड्यूस करना है अगले पेपर में, तो क्या हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी, राइट। सी दीज आर द टेक्स्ट रिसाइकलिंग गाइडलाइंस, राइट। Now, there are some more guidelines, that is retraction guidelines, then cooperation between research institutions. See, please note down these retraction guidelines because I am going to give you a in-depth explanation for this, right? Retraction. See, there are some more guidelines, that is a short guide to ethical editing for new editors, then principles of transparency and best practice in scholarly publishing. So these guidelines are issued, and they have explained the ethics in research publications by following the flow charts like this: allegations of misconduct, authorship and contributorship, complaints and appeals. So uh, and case studies also they have given some. See, under case studies I have given the word plagiarism, and there are several case studies they have quoted in their website, that is double plagiarism, then suspected plagiarism, extensive plagiarism, right? And they have explained by using these flow charts, right? तो ये सब फ्लो चार्ट्स आप यूज कीजिए, यू गो थ्रू दोज कोप गाइडलाइंस, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू रिट्रैक्शन गाइडलाइंस। दिस इज अ वेरी न्यू कंसेप्ट फॉर यू ऑल, आई नो। रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपका पेपर पब्लिश हो गया, वो सबने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में कुछ लोगों ने उसके ऊपर डेटा पे, इमेजेस पे कुछ ऑब्जेक्शंस किया, और अगर रिव्यूअर ने भी कुछ गलत काम किया है, उसने भी अच्छे से रिव्यू नहीं किया है और उसमें कुछ एरर रह जाती है, तो उसको पब्लिकेशन स्टेटस से हटा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिट्रैक्शन। अभी देखिए, रिट्रैक्शन इज अ मैकेनिज्म फॉर करेक्टिंग द लिटरेचर and alerting readers to articles that contain seriously flawed or erroneous content or data that their findings and conclusions cannot be relied upon. मतलब रीडर्स को बताया जाता है कि ये रिट्रैक्टेड पेपर है, इसमें कुछ तो भी गलती है और उसके जो कंक्लूजन्स और फाइंडिंग्स है उसके ऊपर आप विश्वास मत रखिए। इट इज रिट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिकेशन स्टेटस। देखिए, the main purpose of retraction is to correct the literature and ensure its integrity rather than to punish the author. इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो भी अगले रिसर्चर्स है, फ्यूचर रिसर्चर्स है, उनके पास में करेक्ट लिटरेचर जाना चाहिए, करेक्ट डेटा जाना चाहिए। पर उन्हें एग्जिस्टिंग लिटरेचर ही गलत मिलेगा तो उनके ऊपर का रिसर्च पूरा गलत होते जाता है। इसीलिए रिट्रैक्शन का जो है उसका समावेश किया गया ये एथिक्स में, राइट। इसमें उनका उद्देश्य ये नहीं है कि उस ऑथर को पनिश करना है किसी भी तरह से, राइट। नाउ you can see this retractions may be used to alert readers to cases of redundant publication, plagiarism, peer review manipulation, reuse of material or data without authorization, copyright infringement, or some other legal issues. Okay, unethical research, or failure to disclose a major competing interest that would have unduly influenced interpretations or recommendations. तो ये सब चीजों में वो रिट्रैक्शन होता है। अभी देखिए, अगर आप गूगल में जाएंगे और रिट्रैक्शन डेटाबेस टाइप करेंगे
तो आपको एक डेटाबेस ओपन होगा, इट इज अवेलेबल अंडर ओपन एक्सेस, यू कैन सर्च इट फुल्ली। ओके, अभी ये जो रिट्रैक्शन डेटाबेस है उसमें मैंने सब्जेक्ट में फूड साइंस डाला, तो फूड साइंस के ऊपर में आप देख सकते हो कि 109 आइटम्स जो पेपर्स है उसको रिट्रैक्ट किया गया है, and you can observe this paper is published in elsewhere by elsewhere. See, this is Wiley publications elsewhere, यानी reputed journals of reputed publishers के भी papers withdraw किए गए हैं, रिट्रैक्ट किए गए हैं। अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने उसको और स्पेसिफिक बनाया, फूड साइंस के 109 पेपर्स जो है रिट्रैक्टेड है, तो इंडिया से कितने हैं? तो इंडिया से 12 पेपर्स मिले मुझे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिस पेपर और वाज पब्लिश्ड बाय स्प्रिंजर, दिस इज टेलर एंड फ्रांसिस, दिस इज अगेन स्प्रिंजर। तो अच्छे अच्छे रेप्यूटेड जर्नल्स के पेपर्स भी एरोनियस डाटा की वजह से रिट्रैक्ट किए गए। नाउ आई हैव गिवन हियर कंट्री एज इंडिया, देखते हैं कि रिट्रैक्टेड डेटाबेस में इंडिया के कितने पेपर्स है। We have 1237 papers from India which were published. See here also it is Medno publisher. It is a very popular publisher for open access journals in medical sciences, right? Now we will go ahead, and you can see I have given the name of the publisher as Elsevier. एल्सवियर ने पब्लिश किए हुए 3184 पेपर्स जो है वो रिट्रैक्ट हो चुके हैं अभी तक बिकॉज ऑफ एरोनियस डाटा एंड सो मेनी रीजंस ऑफ रिट्रैक्शंस, राइट? नाउ रिट्रैक्शन के कारण उन्होंने दिए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो रिट्रैक्शन के कारण है जैसे ब्रीच ऑफ पॉलिसी, then civil proceedings, complaints about author, complaints about company, institution, complaints about third party, then issues about data, image, authorship, ठीक है, issues of referencing attribution, issues about results, then you can see this is copyright claims, some more we can see criminal proceedings, then you can see date of retraction, then doing the right thing, then you can see duplication of article, duplication of text, data, image, then you can see error in analysis, error in data, error in image, error in material, error in methods, then ethical violation of by author, third party, then duplication, then you can see some more fake peer review, falsification, fabrication of data, uh, fabrication of image, fabrication of results. Then you can see some more, that is manipulation of images, then legal reasons. Some more are there for retraction, that is miscommunication, then misconduct by author. Then you can see here plagiarism is also there, plagiarism of data, plagiarism of article, plagiarism of image, plagiarism of text. Then you can see unreliable image, unreliable data. So these are so many reasons and criteria to retract the paper from its publication status, right? Here one thing I would like to tell you friends, हमने जैसे पुणे यूनिवर्सिटी करके एक मैंने ऐसे ही एफिलिएशन में डाला, तो पुणे यूनिवर्सिटी के भी 3 पेपर्स जो है वो रिट्रैक्टेड स्टेज में है। नाउ I would like to highlight one very important point for all of you, that is, suppose you are writing a paper and you are sending it to a reputed publisher, and suppose you are giving a reference to the retracted paper, then what will be the fate of that particular paper? समझ में आ रहा है आपको ये चीज? रिट्रैक्टेड पेपर आपने कंसल्ट किया और उसका रेफरेंस आपने आपके पब्लिकेशन में दिया, क्या है, आपका पेपर ही गलत हो गया ना, बिकॉज यू हैव यूज्ड एरोनियस डाटा। तो आपको ये चीज का ख्याल रखना है, ये चीज को भी देखना है कि विच लिटरेचर यू आर यूजिंग, वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट, वेदर इट इज रिपोर्टेड इन दिस रिट्रैक्टेड डेटाबेस और नॉट, ये आपको पता करके लेना है, यू हैव टू क्रॉस चेक इट।
अभी हम आगे चलते हैं। पुणे यूनिवर्सिटी का हमने देखा। मैंने रिसर्च आर्टिकल्स, आर्टिकल टाइप में रिसर्च आर्टिकल को क्लिक किया यहाँ पे, तो 12,191 12,191 papers, research articles have been retracted so far. Okay. अभी ये 2020 कोविड-19 के कारण हम लोगों ने सफर किया है। सो ये जो पर्टिकुलर ईयर था 2020, उसमें कोविड-19 के ऊपर में बहुत सारे पेपर्स और रिसर्च पब्लिश हुआ। देखिए अभी वो जो पेपर्स थे उसमें से भी कुछ पेपर्स रिट्रैक्ट हुए, तो जस्ट एक इंटरेस्ट के तौर में मैंने ये पर्टिकुलर रिट्रैक्शन वॉच में कोविड-19 कीवर्ड दिया, तो मुझे इतने सारे कोविड-19 के पेपर्स जो है वो रिट्रैक्टेड में मिले। देखिए मतलब कहीं ना कहीं कुछ एरर्स इनके डेटा में था, तो उसको तुरंत पब्लिश हुआ लेकिन उसको तुरंत रिट्रैक्ट भी कर दिया, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द ethical aspect of research. Now you can see this scope is giving you a e-learning package, okay, regarding its publication ethics. You may enroll yourself for this particular course. देखिए वो मॉड्यूल्स बता रहे हैं यहाँ पे: selective reporting, reviewer misconduct, redundant publication, plagiarism, introduction to publication ethics, falsification, fabrication, correction, retraction, and expressions of this. So these are the modules. और अगर आप interested हो तो you can go for such e-learning given by this COPE, right? Now I am coming to research misconduct. रिसर्च मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है? रिसर्च मिसकंडक्ट मीन्स फैब्रिकेशन, falsification or plagiarism. See, research misconduct means fabrication, falsification or plagiarism in proposing, performing, reviewing and reporting research results. मतलब ये तीन चीजें अगर इन 4 स्टेजेस में आप करते हो, इट बिकम्स रिसर्च मिसकंडक्ट। देखिए प्रपोजिंग स्टेज में, परफॉर्मिंग स्टेज में, रिव्यूइंग स्टेज में और रिपोर्टिंग स्टेज में अगर आप फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन और प्लेजरिज्म करते हो तो इट काउंट्स टू रिसर्च मिसकंडक्ट। नाउ it is rightly said that fabrication, falsification and plagiarism are 3 cardinal sins of in research misconduct. अभी प्लेजरिज्म के बारे में तो हमने अभी अच्छे से पढ़ लिया। नाउ I will go to fabrication and falsification, right? What fabrication is? Fabrication is the construction and or addition of data, observations or characterizations that never occurred in the gathering of data or running of experiments. इसका मतलब ये है कि आपने डेटा में एडिशन किया, ठीक है? अभी देखिए हमारे यहाँ पे प्री पीएचडी वाइवा होती है। कभी कभी ऐसे स्टेज में बच्चे आते हैं स्कॉलर्स के अभी सबमिशन है, 20 तारीख को सबमिशन है, और अभी देखा जाए तो जो सैंपल उन्होंने लिया है वो गलत है। उनको जो रिस्पोंडेंट्स मिले हैं वो 20% ही मिले हैं। अभी आपको क्वेश्चनर फॉलो करना है तो आपको एटलीस्ट 60+% का रिस्पॉन्स आना चाहिए ना। 20% पे आप कैसे करोगे? तो क्या है, ठीक है मैं करके लाता हूँ मैडम, ऐसा है वैसा है वैसा है, करके लाएंगे, क्या करेंगे, हर एक चीज को 3 से उन्होंने मल्टीप्लाई किया, 60% हो गए। तो ये चीज जो है फैब्रिकेशन ऑफ डेटा में आती है, ये बहुत गलत चीज है। जो हमको मिला ही नहीं उसको आप रिपोर्ट कैसे करेंगे? तो ये कभी करना नहीं चाहिए। इट इज अगेंस्ट द एथिक्स इन रिसर्च, राइट? What is falsification? Falsification is the changing or omission of research results to support claims, hypothesis, other data. देखिए हम जो भी हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, हम जो भी क्लेम्स फॉर्म करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए हमको ऑलरेडी जो डेटा मिला है उसमें हम चेंज करते हैं, तो वो भी गलत है। भैया जो है सो है, ये हमारा हाइपोथेसिस था, वो स्टडी के पहले था, लेकिन स्टडी के बाद में ये इनवैलिड है, उसको बताइए ना इनवैलिड है।
उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो देखा है कि लोगों के हाइपोथेसिस जो सिनॉप्सिस में रहते हैं और जो समरी में रहते हैं वो अलग रहते हैं। हाइपोथेसिस भी बदल देते हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। तो ये जो आता है ये फॉल्सिफिकेशन में आता है। अभी देखिए मैंने आपको कहा कि ऑथर का स्पेशल राइट जो है हमारे कानून में है कॉपीराइट की, है ना? तो वही चीज प्लेजरिज्म में थोड़ी बहुत आप लागू कर सकते हैं। जैसे हमारा सेक्शन 15 जो है 57 जो है इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 का, इट गिव्स ऑथर्स द राइट टू क्लेम द ऑथरशिप ऑफ देयर वर्क अमंग अदर थिंग्स, राइट? यही जो सेक्शन 57 है, इट also grants to the authors the special right, और उसके लिए वो डैमेज चार्जेस मांग सकता है, राइट? इसमें देखिए सेक्शन 63 जो है वो इन्फ्रिंजमेंट एज द क्रिमिनल ऑफेंस ट्रीट करता है, जिसके लिए सजाएं जो है उन्होंने दी है। ये सजाओं के बारे में मैंने आपको पहले ही बताई हूँ, राइट? नाउ आई एम कमिंग टू द कॉमन नॉलेज। जैसे कि मैंने आपको कहा जो चीजें सब लोगों को पता है, नरेंद्र मोदी जी भारत के पंतप्रधान हैं। इसके लिए इंडिया रेफरेंस एनुअल का ये देने के लिए कोई जरूरत नहीं है ना, कोई रेफरेंस देने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज इट इज द थिंग विच इज नोन टू ऑल, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एज कॉमन नॉलेज। और कॉमन नॉलेज आप यूज करते हो तो देर इज नो नीड टू गिव एनी साइटेशन। एंड वन मोर थिंग, when you check the similarity in software, you should also exclude this common knowledge from your publication. तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको वो सॉफ्टवेयर का मैकेनिकल रिपोर्ट को कंसीडर नहीं करना है, आपको उसके ऊपर बैठ के काम करना है। आपके गाइड, आपके स्टूडेंट बैठ के टेक्निकल पर्सन के साथ में बैठ के वो रिपोर्ट जनरेट करना है आपको, ठीक है? अभी देखिए कुछ 4-5 केसेस में बताऊंगी। ये जो पुलित्जर प्राइज है उसका विनिंग है ये डॉरिस गुडविन, ओके? उनको वो बोर्ड से रिजाइन करना पड़ा बिकॉज शी वाज फाउंड टू हैव एक्सीडेंटली यूज्ड अनदर्स वर्ड्स इन वन ऑफ हर बुक्स, ओके? डिसग्रेस। देन शी इज प्रोफेसर, शी इज मेडोना, ओके? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की। उनके काम में रैम्पेंट रैम्पेंट में बार बार हर एक पब्लिकेशन में प्लेजरिज्म पाया गया, तो उनको जॉब से निकाल दिया, ओके? उनका करियर खत्म हो गया। He is Jason Blair from New York Times. He was a reporter. Okay? लेकिन उसने 2002-2005 के बीच में फैब्रिकेशन किया 40 स्टोरीज में। He was fired from the job. लेकिन एक बहुत गलत चीज और भी हुई कि इस वजह से दैट टॉप 2 एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर रिजाइन एज अ रिजल्ट ऑफ द स्कैंडल। उनको रिजाइन करना पड़ा, यानी 3 लोगों का करियर खत्म हुआ। एक स्टूडेंट थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने लोकल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा जो प्लेजराइज था, तो उनकी एडमिशन रिवोक की गई। नाउ आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगी मैं यहाँ पे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है 23 February 2013, ओके? See, plagiarism in colleges was always associated with doctoral students and faculty members who copy from the hard work of others and pass it off as their own. Now, colleges applying for government accreditation have been found indulging in the same shameful practice. फॉर एग्जाम्पल पेजेस 38 to 139, देखिए हमारा एसीएसआर हम सबमिट करते हैं, तो एक कॉलेज ने क्या किया, जो हायर ग्रेड मिला हुआ कॉलेज का एसीएसआर रेफर किया। रेफर करना गुनाह नहीं है, लेकिन उसको कॉपी करना गुनाह है। एक्चुअली पेजेस 38 to 139 यानी मोर देन 100 पेजेस उन्होंने डिक्टो वैसे के वैसे वर्बैटिम कॉपी करके अपने एसएसआर में डाली। और प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि द प्लेजरिज्म केम टू द लाइट एक्सीडेंटली because the NAC had appointed S. Sebastian sir, the principal and secretary that college जिनका SSR कॉपी किया गया, वो कॉलेज था लोयोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन चेन्नई, ओके? तो उसके जो प्रिंसिपल थे एस सेबेस्टियन, उन्हीं को NAC ने ये जिन्होंने कॉपी किया उनके पीयर रिव्यू टीम में भेजा एज द मेंबर कोऑर्डिनेटर। तो उन्होंने जब इंटरव्यू दिया कि जब उनका एसएसआर मेरे पास आया और मैंने पढ़ा, तो आई फेल्ट दैट मैं मेरे खुद के कॉलेज का एसएसआर पढ़ रहा हूँ करके।
तो मैंने मेरे खुद के कॉलेज का SSR मंगवाया और टैली किया, तो पेज नंबर 38 से 139 तक वैसे के वैसे हमारे SSR की पेजेस उसमें थी। सो इस प्रकार का प्लेजरिज्म भी आ रहा है सामने। देखिए ये तो बहुत ही पैथेटिक चीज है जब 26-year old फैकल्टी ऑफ वाडिया वुमेन्स कॉलेज सूरत, शी कमिटेड सुसाइड बाय हैंगिंग हरसेल्फ, और she was upset after the allegations of plagiarism in her MPhil thesis, right? तो ये तो बहुत दुखदायक घटना है, प्लेजरिज्म की वजह से ऐसे भी होता है। देखिए, इंडिया साइंस एडवाइजर CNR Rao has apologized for not noticing some copied text in a paper published last year. Okay. देखिए एक और ड्रामेटिक चीज हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि द ड्रामेटिक एलिगेशन ऑफ प्लेजरिज्म वाज मेड ऑन द डिविजनल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बाय द स्पाइसी IP ब्लॉग ऑन December 1, 2015. हुआ ऐसा कि द दिल्ली हाई कोर्ट प्लेजराइज्ड 33 paragraphs of its judgment in Roche versus Cipla case from a law review article written by Shwetashri Mujumdar and Ishan Ghosh in the Queen Mary Journal of Intellectual Property. हुआ ऐसे कि क्वीन मेरी जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मुजुमदार और घोष ने एक आर्टिकल लिखा, रिव्यू आर्टिकल था वो लॉ का। उसमें से दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट देते वक्त रोश एंड शिप्ला केस में उसमें से 33 पैराग्राफ्स कॉपी किए। तो the Delhi High Court acknowledged the truth of the plagiarism report in an order passed on 8 December. उन्होंने एक्सेप्ट किया ये चीज हुई है, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाला? The responsibility of the plagiarism was laid down to an intern who was told to write a precise facts of the case. वो इंटर्न के ऊपर में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। देखिए मुल्कराज आनंद, इंद्रानी ऐकत, देन VN नारायणन, BS राजपूत जो VC थे, वाइस चांसलर थे, देन शिव खेरा, इन जैसे बड़े बड़ी पर्सनालिटीज भी ये प्लेजरिज्म का शिकार बन चुकी है। अभी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ कॉन्फ्रेंस में जब मैं एडिटर थी प्रोसीडिंग्स की, तो सब पेपर्स जब आते हैं तो मुझे 2 जगह ऐसा अनुभव आया कि एक ओपन सोर्स में एक पेपर है किसी और थर्ड पार्टी का, और वही पेपर कॉपी करके खुद का नाम लिख के एक बंदे ने कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा, और उसी कॉन्फ्रेंस के लिए एक दूसरी लेडी को भी वही पेपर मिला कॉपी करने के लिए, और वही पेपर उसने खुद के नाम से भेजा। सॉफ्टवेयर वाला दिखा रहा है कि ये पेपर जो है एक ही आदमी का है, तीसरे आदमी का, ये दोनों का है ही नहीं। तो इस प्रकार से मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी है। दूसरा एक एक्सपीरियंस था, थीसिस वैल्यूएशन के लिए हमारे पास में आती है उसमें एक मैं डमी टाइटल आपको बता रही हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का कलेक्शन डेवलपमेंट का थीसिस आया मेरे पास में, तो वो आया 2013 में, और 2013 में आया तो उसमें कलेक्शन मतलब डेटा कब तक का चाहिए, एटलीस्ट 2010 तक का डेटा एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो थीसिस में डेटा था 1986 टू 1999 का। फिर मैंने उसको चेक किया, शोधगंगा में यूज किया सॉफ्टवेयर का मैंने थोड़ा बहुत देखा, लेकिन कहीं से मिला नहीं मुझे। तो प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि शोधगंगा में एक थीसिस में मुझे जो अवार्ड हुआ था 2003 को, तो 2003 के हिसाब से वो डेटा बराबर था 1986 टू 1999, राइट? लेकिन ये बंदे ने क्या किया कि सेम डाटा उस थीसिस का कॉपी करके पेस्ट किया थीसिस में। तो पता कैसे चला? क्योंकि वो थीसिस था गुजराती स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, ये थीसिस था अंग्रेजी में, तो वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो ये सॉफ्टवेयर की समस्याएं हैं कुछ कुछ। तो इस प्रकार से इवन जो PDF PPTs है वो भी कभी कभी क्या होता है, प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर चेक नहीं कर पाता है, इमेजेस वो चेक नहीं करता है, राइट? दीज आर ऑल द things given, मतलब limitations. There are some open source software also to check the plagiarism, but I would not recommend you to use these softwares क्योंकि इसके बहुत सारे limitations है, और डेटा अपना कहाँ जाता है हमें पता नहीं चलता है। ओके, सो copycat gold, edutai.com, then Google itself is a checker, then you can see this many are there. Moz is there, JPLAG is there, plagiarism.org is there,
Turnitin and Authenticate are the commercial software. Okay, and this is Turnitin page you can see over here. And Turnitin जो है वो 30 languages को चेक कर रहा है. Then this is Urkun page. देखिए मैंने पहले भी कहा उर्कुन का जो मैकेनिकल रिपोर्ट वो जनरेट करता है उसके ऊपर आपको वर्कआउट करने की जरूरत होती है, राइट. कॉमन नॉलेज आप स्किप कर सकते हो, कोटेशन स्किप कर सकते हो, उसके बाद में जिसके आपने ब्रेविटी के साथ लिए हुए और साइटेशन दिए हुए पोर्शन है उसको भी आप स्किप कर सकते हो, ठीक है. एंड फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में एक है जो है plaxcan.com. You can see the in this way you can check and it will give you a report. Then plaque tracker is also there. प्लैक ट्रैकर को मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया है यहाँ पे, ठीक है. plagiarism.net is also there. plagiarism.net. ओके, वो इस प्रकार से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में रिपोर्ट जनरेट करके देता है. देन यू कैन सी हियर one more is there, that is Viper is there. Then Viper भी डाउनलोड करना पड़ता है. Then free plagiarism checker is also there. देखिए हमारा प्रॉब्लम पुअर साइटेशन जो होता है उसके लिए आपके पास में अभी बहुत सारे टूल्स है, स्टाइल मैनुअल्स है. जैसे आप इवन वर्ड में MS वर्ड में रेफरेंस का जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं आप. There are so many style manuals available, referencing styles. Use APA, MLA, Chicago, Harvard, anyone. Then now there are online reference management tools also, like Zotero, Mendeley, EndNote. There are so many. You can take help of all these tools. Now I would like to conclude. See, मुझे एक बिल गेट्स का मैसेज दिखा वेब पे और उन्होंने प्लेजरिज्म को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का नाम दिया है बिल गेट्स ने. उन्होंने कहा कि द थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट इज ऑन द राइज इन द कंटेम्पररी टाइम. वो कहते हैं कि ये प्लेजरिज्म जो है थ्रू कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट वो 3 प्रकार से किया जाता है. द फर्स्ट वन इज स्टीलिंग विद द वेब, द सेकेंड वन इज स्टीलिंग विद इन द वेब, एंड थर्ड वन इज स्टीलिंग फ्रॉम द वेब, right? Now this is the last message from my side. देखिए this is an iceberg. आइसबर्ग के जैसे भी हम देखते हैं टाइटैनिक फिल्म की याद आती है. देखिए ये बीनीथ द सी बहुत होता है और जो दिखता है बहुत कम दिखता है. वैसे ही मानव की प्रकृति होती है. हम जो दिखते हैं दैट इज आवर बिहेवियर, लेकिन हमारे अंदर जो होता है वो होते हैं हमारे कन्विक्शंस, हमारे बिलीव्स, हमारे वैल्यूज, हमारी आइडेंटिटी, हमारे मोरल्स, राइट. तो ये सब आपका अंदर की चीज जो है वो बाहर लाइए अभी, उसकी बहुत जरूरत है. हमारे एथिक्स हमारे आचरण में आने चाहिए, उसकी बहुत जरूरत है. और ये जो आप अंदर से हो उसका ही जो इम्पैक्ट है आपके बिहेवियर पे आता है. सो बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ, follow your motives, values, standards, ethics, and beliefs. Be honest and give proper citations and start with the quality research work. This is the message for today's session. Thank you very much for patient listening. And if you have any queries, anybody have any queries, you are free to ask me, right? I am stopping the sharing and then we can discuss the things. Okay? Right? Thank you, Preeti. थैंक यू मैडम. फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस हैं? हाँ मैडम, एक प्रश्न आहे. हाँ. हॅलो. यस सर बोला. मॅडम कॉपीराईटच्या संदर्भात आपण जी परमिशन मागतो ती ओरली चालते का? म्हणजे सपोज आपण मोबाईलवर कोणासोबत विचारणा केली, रेकॉर्डिंग असेल त्याचं, तर ती चालते का किंवा नसेल, चालत असेल नसेल, काय प्रोसिजर आहे परमिशन मागायची? सर सगळ्यात सेफ जे आहे ते आहे ईमेल टाका आणि तो ईमेल सेव्ह करून ठेवा. ही नाही चालणार ना, ओरली नाही चालणार ना?
ओरली पण चालेल गुड फेथ मध्ये, परंतु कधी कधी काय होतं मी तुम्हाला सांगू का, आपण ते फोनचं रेकॉर्डिंग करतो. माझ्यासोबतच या गोष्टी रिसेंटली झालेल्या आहेत आणि माझा फोन अचानक हँग झाला आणि तो गेला, एक्सपायर केला आणि त्यातला सगळा डेटा, इम्पॉर्टंट डेटा चालला गेला. ओके, बरोबर. कारण हे लिगल मॅटर असल्यामुळे कसं होतं की काही गोष्टी तुम्हाला जपून ठेवाव्या लागतात. राईट? बरोबर. हा, थँक्यू. येस. हॅलो मॅम. हॅलो. हा, येस सर. मॅम, क्वेश्चन असा आहे की आपण फ्लॅगर.वरती जर समजा आपला रिसर्च पेपर फ्लॅगरिझम केला आणि त्याचं आपल्याला सर्टिफिकेट मिळालं आहे PDF फॉर्म मध्ये, आणि हा, ते जर समजा 10% खाली आहे, तर मग आपण त्या सर्टिफिकेटला जोडून तो रिसर्च पेपर चांगल्या जर्नल मध्ये टाकू शकतो का? परत एकदा विचारा, तुमचा आवाज कटत होता. मॅडम, माझा प्रश्न असा आहे की हा. आपण जो रिसर्च पेपर लिहिलेला आहे तो जर समजा फ्लॅगरिझमा.नेट याच्यावरती आपण ऑनलाईन केला आहे, नाही PDF नाही फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला त्याचा नाही रिपोर्ट नाही मिळाला. नाही नाही ते ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आहे. हे पहा, मी तुम्हाला एक सांगते, जस्ट लिसन. मला हा इश्यू घ्यायचा नव्हता, पण मला हा इश्यू घ्यावा लागत आहे. मी तुम्हाला सांगते, तुम्ही उरकून मध्ये चेक केला पेपर, सपोज 20% आलं आणि तोच पेपर तुम्ही जर का टर्निटिन मध्ये चेक केलं तर 10% मिनिमम जास्त सिमिलॅरिटी चेक येते. का ते मी तुम्हाला सांगते. कारण जे सबस्क्राईब डेटाबेसेस असतात, ते सबस्क्राईब डेटाबेसेस टर्निटिनने उरकूनपेक्षा जास्त विकत घेतलेले आहेत, तर त्यांचा डेटाबेस मोठा आहे, कळलं. आणि उरकूनचा डेटाबेस कमी असल्यामुळे 20% आलं. टर्निटिन मध्ये तुम्ही तोच पेपर चेक कराल तर 30% येऊ शकतो. ही एक गोष्ट इम्पॉर्टंट आहे. दुसरी गोष्ट अशी पण आहे की हे जे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर जे आहेत, मी तुम्हाला दाखवलं का, तर त्याच्या लिमिटेशन्स आहेत. ते फक्त ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर जितकं लिटरेचर आहे तेवढंच स्कॅन करतात आणि तुम्हाला रिपोर्ट देतात. त्यामुळे डोंट यूज दिस सॉफ्टवेअर्स. माझं तर म्हणणं आहे की आय वुड नेव्हर रेकमेंड, म्हणजे नका करू ते. ते स्कूल लेवलला किंवा असाइनमेंट लेवलला मुलांच्या इंटरनल चेकिंग करता ठीक आहे, बट नॉट फॉर रेप्युटेड जर्नल पब्लिकेशन्स. गो फॉर उरकून और टर्निटिन. राईट? ओके, थँक्यू मॅम. ओके सर. और किसी को कुछ क्वेश्चंस है? मॅडम, एक प्रश्न होता. हा, बोला. आता आय वॉज वेटिंग फॉर द क्वेश्चन. खूप छान, अगदी डिटेल मध्ये घेतलं तुम्ही आणि खूप अलर्ट केला आम्हाला, त्याबद्दल धन्यवाद. मेरा क्वेश्चन ये है मैडम कि आपने बताया कि जो रिसर्च पेपर अपन लिखते हैं अच्छे अच्छे जर्नल्स में, एंड पूरा साइटेशन देते हैं, परमिशन लेते हैं, सब कुछ होता है, बिकॉज वी आर पब्लिशिंग फॉर द फेयरनेस, है ना, मीन्स रिसर्च पर्पज ओनली. तो ये हो गया. बट ये पेपर जब हम एज अ लेक्चरर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर, जब कैश के लिए इंक्लूड करते हैं, कैश के लिए, कैश इन द सेंस वी आर गेटिंग द मॉनेटरी बेनिफिट्स फॉर अस, प्रमोशन, है ना. सो इन दैट केस इट्स प्लेगरिज्म. It is not plagiarism. According to me, it is not plagiarism. अच्छा. Because we are taking the benefit of our publication. Yeah, no, that time Rather, we we have are taken. publishing the things for cash nowadays. No, that time we have taken the permission only for the fairness and research purpose only. Okay, but this Huh. paper we have include for the cash. No, I got your question. See, आपण पेपर पब्लिश केलेला आहे, तर त्यावेळेस कॅश साठी आम्ही हा वापरू शकतो अशी परमिशन घ्यायची आहे, असं म्हणायचं ना तुम्हाला? हा, म्हणजे स्लाइटली माझं तसं म्हणणं आहे की असं घ्यायचं का, म्हणजे पुढे पुढे समजा जर आता आपण पब्लिशिंग करतोय पण हा पेपर कॅश साठी पण जाऊ शकतो, तर तुम्ही परमिशन देऊ शकता का, असं करायचं का, असं थोडा मला पण थोडा माझ्या फॅकल्टीला सांगायला जरा बरं पडेल, म्हणजे तुमचा एक्सपिरियन्स आहे. माझ्या प्रमाणे तुम्ही परमिशन घेतली तरी चालतं,
आणि तुम्ही परमिशन कुणाची म्हणत आहे ते मला युनिव्हर्सिटी ऑथॉरिटीची नाही 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 म्हणजे एखादा की ऑडिटरच पब्लिशरची? आपण हा हा फर्स्ट पब्लिशरची म्हणजे जसं प्रिव्हियस पब्लिशिंग झालं आहे त्याचा डाटा आपण जेव्हा घेतो ना आपण त्यावेळेस त्याला हा. म्हणतो की आपण हे रिसर्च पर्पज आहे, हे फक्त हम्म. आमच्या अकॅडमिक पर्पज आहे, फेअर यूज आहे असं म्हणतो ना आपण. याच्यात हम्म. कुठलाही कमर्शियल भाग नसतो असं म्हणतो आपण. पण तोच हा. पेपर जेव्हा आपण कॅश साठी लावतो दॅट वॉज मॉनिटरी बेनिफिट येतो असं असं मला म्हणायचं. नाही नाही, त्याच्यामध्ये कॉपीराइट व्हायोलेशन पण नाही होत आहे सर, बिकॉज इट्स ओरिजिनल युअर्स पेपर आणि प्लॅजरिझमही होत नाही त्याच्यामध्ये. अच्छा अच्छा. मला नाही वाटत की ते घ्यावं लागते परमिशन की हा ओके. पेपर आम्ही अकॅडमिक याच्याकरता वापर करू म्हणून, कॅश करता वापर करू, म्हणजे मला नाही वाटत, थँक्यू मॅडम. माझं आणि मत पर्सनली. थँक्यू मॅडम. आणि इफ यू एक कॅन ऍड, जर का तुमच्या नॉलेजमध्ये असेल काही तर यू कॅन ऍड द थिंग्स. ओके. सेकंड थिंग, Hello, ma'am. कारण अशा केस एक मॅडम Yes. माझा कंटिन्यू दुसरा प्रश्न आहे, हे रिट्रॅक्शन डाटाबेसेस जे आहेत त्यातलं खूप छान सांगितलं तुम्ही की रिट्रॅक्शन डाटाबेसेस जर तुम्ही पाहिला तर खूप सारे रिट्रॅक्शन झाल्याची आपल्याला माहिती मिळाली आहे. माहिती पण मिळाली. त्यात असं मला नाही दिसलं, कदाचित तुम्हाला दिसलं असेल की आज समजा माझा पेपर रिट्रॅक्ट झाला असेल तर माझी ड्युटी आहे ती की मी तो काढून घ्यायला पाहिजे पब्लिशिंग हो. याच्या. तर हो. असे किती झालेत म्हणजे 12,000 असे किती झाले याचा डाटाबेस मिळतो का आपल्याला? डेटाबेस तर पूर्ण अवेलेबल आहे ना. नाही नाही, रिट्रॅक्शन डाटाबेसेस आहे की आता हा, जसं तुम्ही पुण्याचं रिट्रॅक्शन उदाहरण. मीन्स त्यांनी काढून ऑलरेडी बाहेर टाकलेला आहे. इट इज नाही ऑलरेडी रिट्रॅक्टेड. तो आता हा, परत काढण्याची गरज नाहीये. नाही नाही नाही, हा, पर्सनल. तो दॅट रिट्रॅक्टेड पेपर ही कॅनॉट यूज फॉर कॅश प्रमोशन्स. येस येस. दॅट इज द थिंग. तेवढं तुम्ही ऑनेस्ट राहायला पाहिजे, कारण का कॅशची कमिटी, तुमचं स्क्रुटिनी कमिटी विल नॉट गो टू रिट्रॅक्शन डेटाबेस. आणि प्रमोशन साठी पण अपॉइंटमेंट साठी पण वापरतात ना नाही, तसं नाही असिस्टंट चालणार तो पेपर. नाही चालणार तो टू. पेपर. थँक्यू मॅडम, थँक्यू व्हेरी रिट्रॅक्टिव्ह मच. पेपर तुम्ही नाही वापरू शकत. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. Good afternoon, ma'am. With your permission, I would like to add something. Yes. आता जर सरांनी जे विचारलं होतं की कॅशसाठी वापरता येतं का, जेव्हा म्हणजे माझा जो अनुभव आहे त्यावरनं मी सांगतेय की जेव्हाही आपण एखादा रिसर्च पेपर लिहितो तर प्रायमरी हेतू जरी आपला नॉलेज बेस्ड असतो की आपण नॉलेज गेन करतोय, पण अंडरलाईन हेतू हा पण असतो की आपण कॅशसाठीच हे सगळं करत असतो. राईट. काही वेगळं नसतंच. त्या कारणानं जेव्हा रिसर्च पेपर लिहितो तेव्हा जेव्हा परमिशन घेतली असते ती परमिशन फुल टाईम असते. नंतर त्याचा आपण कुठे कसा वापर करतो ह्याच्याशी त्याचं काही घेणं देणं नसतं. ॲज पर माय नॉलेज, ॲज पर माय एक्सपिरियन्स, तेच इथे सांगायचं होतं सरांना की एकदा आपण जे काही परमिशन घेऊन मटेरियल यूज केलेलं आहे ते परत आपण कुठेही आपल्या See, त्याचा one thing I would, परत परमिशन one घेण्याशी thing, काही घेणं देणं नसतं. पवार मॅडम, आय वुड जस्ट लाईक टू टेल यू वन थिंग मोर, की हा इश्यू खूप चांगला आहे. मी तुम्हाला सांगू का, हा जो हे आहे, काय म्हणतात त्याला, रिसर्च साठी आपण पेपर केला आणि तोच आपण कॅशसाठी वापरायचा की नाही वापरायचा, याच्याकरता स्पेशल परमिशन पाहिजे की नाही पाहिजे. तर मला तुम्हाला इथे ऍड करायचंय की आपण आपण कॉलेजेसमध्ये टीचिंग आणि रिसर्च, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर ड्युटी, राईट. तर त्याच्यामध्ये आपण हे पब्लिकेशन्स करत असतो. परंतु इफ यू गो टू स्टेट गव्हर्नमेंट अँड सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफिसेस, तर तिथे तुम्हाला स्पेसिफिक परमिशन घ्यावी लागते पेपर पब्लिश करण्याच्या अगोदर पण. तुम्ही स्वतःहून नाही पाठवू शकत पेपर. दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यू. आणि आपली पार्ट अँड पार्सल ड्युटी आहे ही रिसर्च आणि हे टीचिंग. त्यामुळे कसं आहे की युनिव्हर्सिटी पीपलला ते परमिशन घ्यायची गरज नाही असं मला वाटतं. नाही, आमच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये समजा जर तुमच्या विद्यापीठाचं नाव लावायचं असेल तर यू हॅव टू गेट अ परमिशन फ्रॉम डायरेक्टर, मीन्स पर्टिक्युलर दॅट डिसिप्लिनरी डायरेक्टरची परमिशन घ्यावी लागते. हा, म्हणजे तुमच्या विद्यापीठामध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे जे रूल्स आहेत ते लागू करून राहिले. कारण हो, सेंट्रल कारण गव्हर्नमेंटमध्ये आय हॅव सर्व्ड फॉर 11 years. आय नो हा. व्हॉट डिफिकल्टी आय फेस ड्युरिंग दॅट पॉइंट. नाही, आणि आता पवार मॅडमनी जे सांगितलं ना, तर आमच्याकडे तो हे झालेला आहे
प्रोफेसरशिप म्हणजे प्रोफेसरसाठी त्यांनी अप्लाय केलेला होता आणि त्यांनी कॅश साठी 12,000साठी त्यांनी अप्लाय केलेला होता. तर हे जे सायन्स वाल्यांचे जे पेपर्स असतात ना ते खूपच सेन्सिटिव्ह असतात. तर त्याच्यासाठी त्यांनी घेतलेलं होतं ते अकॅडमिक पर्पज हे घेतलं होतं आणि आता अच्छा अच्छा 12,000चा स्केल मिळणार म्हणजे त्याला इकॉनॉमिकली बेनिफिट मिळणार म्हणून त्याचा जो कलिग होता त्याने ते हा. हे टाकलं आणि ते केस थांबली ती म्हणजे त्यांचं प्रमोशनच थांबलं म्हणजे दॅट इज द केस म्हणून नाही मला वाटतं इन युनिव्हर्सिटीज मला असं वाटतं इन युनिव्हर्सिटीज इट इज द मॅटर ऑफ इंटरप्रिटेशन. डिपेंड ऑन इट इज द दॅट मॅटर ऑफ पर्टिक्युलर इंटरप्रिटेशन कसं हा ना. करेक्ट. आणि तसे सायन्स आणि टेक्निकल फॅकल्टी खूप सेन्सिटिव्ह असते मॅम, कारण ते एक युनिक हा जे काही त्यांचा रिसर्च असतो तो युनिक असतो. ते बरोबर काहीतरी आहे. सोशल सायन्स सारखा डेटाबेस वगैरे घेऊन त्यांचा रिसर्च नसतो, ते काहीतरी वेगळं युनिक असतं. म्हणजे मला त्यातलं फार माहिती नाहीये, पण सायन्स साठी मी पण असं बघितलं आहे की खूपच स्ट्रिक्ट असतं सायन्स वाल्यांचं. एक्सपेरिमेंटल डेटा असतो ना मॅडम त्यांचा. एक्झॅक्टली, येस, एक्झॅक्टली आणि मॅम. तुम्ही जर का पाहाल ना रिट्रॅक्शन डेटाबेस जर का तुम्ही डीपली पाहाल ना तर त्याच्यात सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीचेच पेपर जास्त आहेत रादर दॅन सोशल सायन्सेस. येस मॅम, थँक्यू मॅम. परत थोडस एक म्हणजे आता प्रश्न म्हणून नाही तसं तुम्ही तो स्लाइटली घेतलाय तो शेवटी पण तो सगळ्या पार्टिसिपंटला आणि विद्यापीठात आमच्याकडे केस झाली म्हणून मला थोडं ऍड करावं असं वाटतं. खरं तर तुमचा वेळ जाईल त्याच्यात. तुम्ही आता नाही नाही शेवटी बोला ना. घेतलं की उरकूनचं सांगितलं आणि एव्हरी युनिव्हर्सिटी हॅज यूज द उरकून आहे ना इम्प्लिमेंट मध्ये दिलेलं आहे. पण जसं तुम्ही सांगितलं की उरकूनचं 10% आलं असेल तर नक्कीच ते टर्निटीमध्ये 20, 25, 30 येतो. आलं लक्षात. आणि आमच्याकडे काय सगळ्याच विद्यापीठांमध्ये 10 पर्यंत जर असेल तुमचं तर यू कॅन सबमिट युअर थेसिस. ओके. तो झाला आणि अकॉर्डिंग टू 2 महिन्यानंतर तो शोधगंगेवर पोर्टलवर प्रसिद्ध झाला. एकाने टर्निटीनच्या रिपोर्ट्स टाकून तो प्लॅगॅरिझम करून दाखवला आणि आमच्या युनिव्हर्सिटीला पाठवला. आता त्याच्यावर केस इन द सेन्स कमिटी बसणं सुरू आहे. तर अशा वेळेस म्हणजे कारण ते जगमान्यता आहे ना त्याच्यामुळे खूपच आणि मी त्या कमिटीत असल्यामुळे मलाही जरा टेक्निकली काय सांगावं काही असं तर तुम्ही काही प्रकाश टाकू शकता का बा याच्यावर? आता युनिव्हर्सिटीने उरकून रेकमेंड केलेलं आहे तर तुम्हाला उरकूनचा रिझल्ट घ्यावाच लागेल ना. हा ते आहे पण हे पब्लिक डोमेनवर जेव्हा एखादी वस्तू जाते पब्लिक डोमेनवर तेव्हा तुम्हाला काहीही करता येत नाही. म्हणजे तुम्हाला सगळ्या गोष्टी त्याचं तेच म्हणणं आहे की पब्लिक डोमेनवर आलं मला माहित नाही तुमच्या युनिव्हर्सिटीने काय दिलं काय नाही. आता मी टर्निटीन सारखं स्टँडर्ड 18 लाखाचं वापरलं आणि मी ते चेक केलं तर याला 30% आलं असं त्यांचं म्हणणं. नाही ते तर आहे परंतु आता काय करणार आहे त्याच्यासाठी आणि लोकांकडे फुरसत पण खूप आहे ना. ते उरकूनचं सर्टिफिकेट घेतल्यानंतर टर्निटीन मधनं चेक करायचं. इट इज पर्सनल रायव्हलरीज आहेत. इट इज द मॅटर ऑफ पर्सनल रायव्हलरी. ह्या दोन्ही केसेस त्या पर्सनलच आहेत. ते अगदी जवळचेच लोक पर्सनलच करतात आहेत. दुसरे कोणीच करत नाही. तेच पुरुषांना तर मी नेहमी म्हटलं. त्या जवळच्या नाही तर लोकांना शोधगंगेवरती पण असे थिसिस मिळतात आपल्याला ज्याच्यात काहीच नाहीये. हा है ना. हो बरोबर आहे. हॅलो. हा नमस्कार मॅडम. हा नमस्कार. माझा एक प्रश्न आहे. तुम्ही रिट्रॅक्शनच्या बाबतीत बोललात. याच्यामध्ये एखादा रिसर्च पेपर आज पब्लिश झालाय किंवा 10 वर्षापूर्वी पब्लिश झालाय मग त्याला असं काही टाइम बाइंडिंग आहे का की त्याला विदिन 1 इयर काहीतरी यामध्ये तो रिट्रॅक्ट होईल की असं काही? नाही असं काही नाहीये. ऍक्च्युली त्याची रिट्रॅक्शनचं खूप सारी कारणं दिलेली आहेत ना. एखादं जरी कारण जर का समोर आलं भविष्यामध्ये तर तो पेपर ते राईट्स पूर्ण त्या पब्लिशरचे आहेत. असं काही टाइम नाहीये. हा असं म्हणजे तो केव्हाही केला जाऊ शकतो. हा कधी केला जाऊ शकतो. आता मी पाहिलं ना काही अर्लियर पब्लिकेशन्स पण आहेत जे नंतर रिट्रॅक्ट झाले. ओके तो थँक्यू. डेटाबेस जर का आपण प्रॉपरली पाहिला ना तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हे पण दिसतं की बा 2 वर्ष झाले 3 वर्ष झाले पब्लिकेशन स्टेटस मध्ये होता आणि नंतर तो हे झाला असंही दिसून येतं. ओके थँक्यू. ओके मॅडम एक प्रश्न विचारू का? बोला सर. हा. हा मॅडम बोला सर. कॅशच्या
कॅचच्या संदर्भात मॅडम युनिव्हर्सिटी वाईज कॅचचे प्रमोशनचे नियम जे असतात आपल्या युनिव्हर्सिटीचे हा. वेगळे आणि अमरावती युनिव्हर्सिटीचे वेगळे, अशा प्रत्येक युनिव्हर्सिटी वेगवेगळे असतात की सेम असायला पाहिजे? सेम असायला पाहिजे, कारण युजीसीने जे डायरेक्शन्स दिलेले आहेत ते आहेत. परंतु कसं होतं की जसं आपल्या युनिव्हर्सिटीने जसं मी म्हणजे ऍप्रिशिएट करते NMU ला, नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी जळगावला, कारण ते जसं युजीसीचे डायरेक्शन्स येतात लगेच त्यांनी त्या अमेंडमेंट्स लावत गेले. है ना, सेकंड आलं, थर्ड आलं, इव्हन कॅपिंगचं जे थर्ड अमेंडमेंट आलं होतं, तर तेही त्यांनी इम्प्लिमेंट लगेच केलं होतं. ठीक आहे ना. तर हे युनिव्हर्सिटीवरती डिपेंड असतं, कारण युजीसी तुम्हाला गाईडलाईन्स देते आणि युनिव्हर्सिटी त्यानुसार तुमच्यासाठी डायरेक्शन काढते. है ना. तर ते आपल्या नागपूर युनिव्हर्सिटीमध्ये थोडं डिले प्रोसेड आहे. आता कोणत्या अमेंडमेंटनुसार ते युनिव्हर्सिटी हे करते तसं आहे. त्याचवरती मी एक लेक्चर बहुतेक घेणार आहे. येस तर मॅम. त्यामध्ये मी तुम्हाला पूर्ण कशा कशा अमेंडमेंट्स आल्या, कशामध्ये काय काय प्रोव्हिजन्स आहेत, तर हे सर्व तुम्हाला सांगितले मी. हे पहा, मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगते की जे आता नवीन जे 7th पेजचं आलेलं आहे डायरेक्शन, म्हणजे युजीसीचे ज्या गाईडलाईन्स आलेल्या आहेत कॅस्टच्या संदर्भात, त्याचा जो फॉर्मॅट आहे तो फॉर्मॅट आम्ही लोकांनीच तर NMU वरनं काढून घेतला. आपल्या विद्यापीठावरती च्या वेबसाईटवरती आलाच नाहीये तो फॉर्मॅट. जे फॉर्म्स भरायचे ना, आम्ही मॅडम, मदत घेतली यांच्या चिकाटे सरांच्या वेबसाईटची मदत घेतली. मी त्यांना विचारूनच घेतली होती मदत. आणि मॅडम त्यांचं तुम्ही एक कॅशवर आणखीन घेणार? खूप चांगली गोष्ट आहे, त्यांनी वर्ड मध्ये दिलेले आहेत ते फॉर्म्स, PDF मध्ये नाही. त्यामुळे ते रेडीली तुम्हाला कॉपी करता येतं. हा मग सर बोला ना. हा मॅडम, तुम्ही आता कॅशवर घेणार असं म्हणताय, पण मी धार्मिक मॅडमांना विनंती करतो की मॅडम आता युजीसीनी अल्मॅट्रिक्स वर म्हणजे मॅट्रिक्स ऑफ रिसर्च हा खूप आपल्या टीचर्स कम्युनिटीला लावलेला आहे. तर मॅडमचं आहे त्याच्यावर. तर सर मला नेक्स्ट वाटतं लेक्चर की त्याच्यावरच तसं आहे आपण आपलं. नेक्स्ट लेक्चर अच्छा, त्याच्यावरच आहे ओके. आता 12:30चं. हे संपवूया आपण आता. बरं. हा, कारण ते खूप महत्वाचं आहे मॅडम आपल्यासाठी. येस 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 12:30चं तेच आहे. नाव वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes अँड प्लीज जॉईन आफ्टर 10 minutes. ओके ठीक मॅडम. आहे. ओके मॅडम. मॅडम मी मीटिंग आता बंद करते सेव्ह करण्यासाठी, मग 5 मिनिटात परत जॉईन कराल. ओके. थँक्यू सो मच मॅम. थँक्यू.